हाय ऑल वेलकम टू वर्चुअल ट्रेडर्स। आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं ये सेशन जो मैं और अंकुर कर रहे हैं विच इज़ ऑन ट्रेड मैनेजमेंट। तो ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं पहले ही इसको आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं और जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस प्रोफाइल के हैं और इससे क्या हम लर्निंग ले सकते हैं। तो अभी हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें, अराउंड 50 पीपल विल बी देयर। तो हमने 50 पीपल का एक लिमिटेशन लगाया था। Now, what all people are here to who are going to listen to this? So there are around 50% of them are scalper. तो scalping आप देखें कि सबसे ज़्यादा हिट जो चीज़ चल रही है वो scalping चल रही है। तो हमारा scalpers होंगे, इसमें swing traders हैं, discretionary हैं, और there are very few people who do not know about their trading style. So indecisive बहुत ही कम लोग हैं. So most of them like they know exactly what is their trading style. तो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड बिकॉज बहुत सारा एक्शन होने वाला है। अंकुर बताएंगे कि कैसे ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेते हैं, एग्जिट लेते हैं, और क्या एक माइंडसेट होना चाहिए प्रोफेशनल ट्रेडर का जो ट्रेड में रहते रहते एक प्रॉफिटेबल जर्नी को सस्टेनेबली कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू वांट टू चेक, we also ask this question to the people who are registering, that how confident do you feel. So you can see that not much of a people are there who are more confident than just mid scale, which is 3. So only around 46% you can say that the medium is some coming around 2.5 or so. So more or less the people are not so much confident while they're entering into the trades. So that is whole our responsibility and our attempt is कि जो भी ये सेशन अटेंड करेगा उसका कम से कम एक पॉइंट यहाँ पे बूस्ट जरूर आए कॉन्फिडेंस में। तो हम इस बारे में बात करेंगे। सो आई होप यू विल वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। Okay, so welcome all to this session by me and Ankur. So Ankur is kind of has prepared everything for all of you. So he has spent much of the time to get everything all together and prepare for the session. So we are really looking forward to his recommendation on the entry and the exits, especially from the point of view of a buyer. So even for the sellers, this is important because they will come to know what is the psychology which is going on of the people who are taking opposite positions. So उनके सेंस में भी ये बहुत important रहेगा। तो without wasting any further time, Ankur, over to you. Yeah, okay. So, hi everyone. I hope you are ready with your pen and paper, and please try to, write down as many points as you can. Okay. So, all you can hear me, right? Yes, yes, yes. Your screen is not visible. Maybe you would like to Yeah, share. just a second. Okay. So, can you see my screen now? Yes, yes, perfect. Yeah. So, I welcome you all to the risk management webinar from an option buyer's point of view. Okay. So, I hope and I assume that you all must be trading option buying. Okay. And I hope you have a pretty much experience of that thing going on. Okay. So, what is option buying? Okay, क्या है option buying? Okay, so I'll be speaking in English and Hindi both mix. Okay, Yeah, so yeah, that would please be consider me. fantastic. Yes. Yeah, okay. So what is option buying? क्या है option buying? Okay, so many have a different perspective that option buying is this, option buying is that. कोई उसका टेक्निकल डेफिनेशन बताता है, ठीक है, बट फॉर मी ऑप्शन बाइंग इज प्लेइंग विथ फायर। ठीक है, तुम आग से खेलते हो ऑप्शन बाइंग में, और सिर्फ खेलते नहीं हो, यू मेक मनी, यू मेक मनी आउट ऑफ इट, and you try to be as consistent as you can. Okay, so option buying is
something, is more of a, it comes naturally. Okay, it's not a safe venue for any trader. Okay, it comes naturally. I don't, yes, it does attract you at the very first instant, but जो लोग starting में option buying करते हैं, after getting used to it at some point, उसके बाद वो छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ देते हैं, विल सी. एंड क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी अपन एक साइड देखेंगे उसका. ओके. So before we start, I just want to tell some more about myself. That's my Twitter handle there. Okay, so you can follow me there also. My name is Ankur Thamke. I'm basically out of Nagpur. I used to be in Mumbai before, but now I'm completely based out of Nagpur. Okay. I've been in trading, in derivatives trading since 2017, and have a pretty much capital. And the most important thing is I am profitable. I'm profitable in option buying. Okay. So I think because I'm profitable and have some of the good and bad experience with me, I am eligible to share my experiences with you. Okay. So also please consider all this. Do not expect me to point out things. Okay. मैं सब आपको ऐसा बोल के ही समझाने वाला हूँ. आई वोंट बी शेयरिंग मच ऑन चार्ट से वगैरह या कुछ. ठीक है. आई ट्राई टू शेयर पूरा पर्सपेक्टिव कि कैसे क्या होता है, कैसे मेरा माइंडसेट काम करता है, कि कैसे आपको कॉपी नहीं करना है वो एग्जैक्टली चीज. आपको अपना एक माइंडसेट और अपना एक साइकोलॉजी बना के, अपना एक नया सिस्टम बना के उसमें ट्रेड करना. ओके. सो please take all these advices with a pinch of salt. Okay. Do not copy it as it is. So before we start, I want to throw some brutal facts at your face. Okay. अगर आप लोग ये समझ रहे हो, and I'm sure that you must be having a 1 or 2 year experience only in option buying or selling or Ankur, anything. could you please share your screen again? Not showing. Okay, just a sec. Yes, correct. Okay. Yeah. So that was all Your about your me. video has gone. If you get Video. your camera. It was there, Oh, but okay. now it's not coming. Just a second. Yeah. Yeah, there. Correct. Screen. Yep. Okay, great. So guys, yeah. So that was all about myself. ठीक है. स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, जो फैक्ट्स काफी काफी नहीं, वो फैक्ट्स सच है. एंड प्लीज कंसिडर दिस बिफोर यू एक्चुअली get into trading with your hard earned money and your hard mental state. इतना टाइम आप देने वाले हो, तो ये सब फैक्ट जान लो, समझ लो, उसी के बाद आओ. ठीक है. सो नो मैटर how much you try, you will mostly you lose money. Okay. High chances of this is, देखो, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आप कितना भी ट्राई कर लो, यस यू कैन विन, बट हाई चांसेस इज यू विल लूज. ओके. So you know all the answer but unable to believe in it and accept it as they are. काफी टाइम ऐसा होता है, मतलब खैर मुझे रिजवान को काफी एक्सपीरियंस है, बट हम लोग जो भी अभी देख रहे हैं, जैसे लोग हमको अप्रोच करते हैं, तो वी सी दैट पीपल आर मोर इनटू, they don't want to know much, but just jump into the thing and start earning money. वैसा होता नहीं है. That's why they have questions. ठीक है. क्योंकि उनको कुछ जानना नहीं है पहले. ठीक है. सो आंसर उनको पता होता है कि क्या होने वाला है, अगर अपन एकदम से ट्रेड ले लेंगे तो वी विल लूज. तो आंसर दे नो, बट उनको वो चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट साइड ऑल्सो.
Also, there are no secret recipes in the stock market or any other businesses. ठीक है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम आप कर रहे हो, उसका कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं होती है. ठीक है, कि अगर आप ये ऐसा कर लोगे तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी और एनीथिंग. ठीक है, यू हैव टू फॉलो सिस्टम, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स. उसी के बाद असली में पैसा बनता है. पैसा बनने से पहले धंधा बनता है. ठीक है, मेकिंग मनी इज नॉट अ गोल, इट्स जस्ट एन आउटकम. ठीक है, पैसा बनाना इट्स वेरी इजी इन द होल वर्ल्ड. ठीक है, ये मैं बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बट वेरी इजी. बट व्हाट इज द टफेस्ट थिंग? इट इज टू बी कंसिस्टेंट एंड टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम. ठीक है, 1 साल 2 साल बहुत लोग बना लेते हैं. कैन यू मेक इट कंटिन्यूअसली 10 years with the same consistency, same returns? Very few do it, right? So be a process guy and have a solution oriented approach. ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करना सीखो. पैसा आज आज 1 रुपया मिलेगा, कल 2 रुपया मिलेगा, हो सकता है परसों 10,000 मिले. ठीक है, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस. बी अ सिस्टमैटिक गाय. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने पास तो अपन डर नहीं जाते. ठीक है, अपने को डरना नहीं है. अगर अपन एक दिन लॉस हो रहा है तो उससे अपने को डरना नहीं है. ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड और समझना है कि कैसे वो लॉस हुआ है, कैसे वी कैन टैकल दैट सिचुएशन. ओके, सो दैट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच. ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. ये आप अपने सिस्टम के सामने लगाओ. ठीक है, और उससे एक चीज समझ लो कि भाई कुछ भी हो जाए, वी आर वर्किंग इन अ सच फील्ड दैट जहाँ पे कोई भी चीज की गारंटी नहीं है. ठीक है, ओके. सो व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू गाइस? ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? विल सीइंग रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट एंड स्केलिंग अप. ठीक है, ये जो 3 टॉपिक है वी हैव जॉटेड डाउन वाया आप सबके फीडबैक से. आप सब ने जो भी फीडबैक दिया है उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों का यही मानना था कि उनको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, एंट्री एग्जिट सीखना है, स्केलिंग अप सीखना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमको यहाँ पे एक चीज समझना चाहिए कि आप सब लोगों ने एक ही सवाल पूछा है, राइट? मोस्ट ऑफ द लोगों ने. So you understand what is the problem here? That very few of you guys have independent thoughts and independent thinking. आप हाई चांसेस है कि आप सब लोग मास मेंटेलिटी के जैसा या फिर मास थिंकिंग में सोच रहे हो. दैट्स व्हाई यू हैव आस्क्ड सेम क्वेश्चन. ठीक है, अगर आप सच में इंप्रूवमेंट कर रहे होते, आप सच में कुछ करना चाह रहे होते, तो आपके क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते. यू मस्ट हैव डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट? तो take out that mass mentality thing ki if someone is if you देखो मैं जो भी सीखा हूँ मैं खुद से सीखा हूँ. ठीक है, आई हैव नेवर डन एनी कोर्स और एनीथिंग. ठीक है, तो मैं खुद से सीखा हूँ, मैं पैसा लगा के सीखा हूँ. ठीक है, आई हैव पेड द प्राइस ऑफ मनी इन द मार्केट टू द मार्केट. ठीक है, सो if you are doing it, you would have as of now and as far as now you have known कि risk management क्या होता है, entry exit क्या होता है, and scaling up क्या होता है. तो पहला चीज ये है कि do not think like a mass mentality. Please have your own independent thought and please accept that कि अगर आप में कुछ कमी है तो उसको आपको कैसे improve करना. मार्केट में सबका आंसर अपने आप ही मिलता है. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि ये सब जानने के बाद, ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब जानने के बाद भी आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो जाए, आपका एंट्री एग्जिट सही हो जाए, आपका स्केलिंग अप सही हो जाए, इट इज नॉट गारंटीड, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट. सो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है? रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट क्यों होना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्क मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्टिव थिंग. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इट्स वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग. क्योंकि क्यों है ये चीज सब्जेक्टिव? क्योंकि सबका कैपिटल अलग है. ठीक है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका एनालिसिस करने का तरीका अलग है, राइट? और सबका रिस्क लेने का ताकत भी अलग अलग है. ठीक है, सो you yourself have to find out कि
how much capital you are going to lose and you are okay with losing that much capital. कितना आप खोने को रेडी हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख 2 लाख से ट्रेड करते हो, हाई चांसेस है कि आप उसी में से ट्रेड करते होंगे 1 लाख 2 लाख. सो टेल योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ दैट क्वेश्चन, हाउ मच यू आर गोइंग टू लूज इन अ मंथ और हाउ मच यू आर ओके विथ लूजिंग. ठीक है. अगर उसका जवाब आपको नहीं पता है तो देन यू हैव टू फाइंड दैट आंसर ऑन योर सेल्फ. आपको कोई बता नहीं सकता कि आपने इतना खोना चाहिए या उतना खोना चाहिए. ठीक है. हम सबका कैपिटल अलग है. मेरा अलग है, रिजवान का अलग है. आप जिन सब बड़े ट्रेडर्स को देखते हो यूट्यूब पे, ट्विटर पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उन सब का कैपिटल अलग है. दैट्स व्हाई उनका रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड करने का तरीका भी अलग है. ठीक है. सो प्लीज आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन कि आप कितना खोने को रेडी हो. ठीक है. उससे क्या होगा, उससे पहला है कि आपका डर निकल जाएगा. क्या डर निकलेगा कि ओके, आई एम ओके विथ लूजिंग 10,000. ठीक है, इन अ मंथ. ठीक है. तो क्या होगा, जब भी आप ट्रेड लोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस में एक चीज रहेगी कि कुछ भी हो जाए, मेरे को अगर महीने का 10,000, दैट मीन्स दिन का 300 रुपया खोना नहीं है. ठीक है. 300 और में भी समथिंग अराउंड कुछ होगा ऐसा. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली आप ऑटोमेटिक एक रिस्क मैनेजमेंट स्टेज में पहुंच चुके हो. ठीक है. उसके लिए आपको कोई सेटअप डालने की जरूरत नहीं है. ठीक है. दूसरा कि जब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड में आप कितना खोने को रेडी हो. ठीक है. सी, यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे स्टार्टिंग से और अभी तक जो भी मैंने बात किया है, इट्स ऑल अबाउट लॉसेस आई एम टॉकिंग. ठीक है. आई हैवंट इवन टॉक्ड अबाउट एंड हैवंट इवन टेल यू अबाउट प्रॉफिट्स. मैं सिर्फ लॉसेस का यहाँ पे बात कर रहा हूँ. तो उसका रीजन वही है कि आपको लॉसेस ही कंट्रोल करने हैं एंड दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. तो रिस्क आपका जितना मिनिमम आपको लगता है कि आपके लिए इतना मिनिमम है, आपको उतना ही रखना होता है. ठीक है. अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो उसमें आई विल नेवर गो बियॉन्ड 2% 5% लॉसेस. ठीक है. ऑल्दो मेरा मेरा जो पर्सनल रिस्क है, आई नेवर पुट एनी स्टॉप लॉसेस. आई नेवर पुट एनी, क्योंकि आई एम यूज टू दैट फीलिंग एंड यूज टू दैट ऐसा जो ट्रेड करते वक्त जो ऐसा एक फीलिंग आता है कि ओ नो नो नो, द ट्रेड इज गोइंग अगेंस्ट मी. बट आई नो कि मेरे को कब रुकना है. सो अकॉर्डिंगली आई विल डायरेक्टली एग्जिट और नॉट. ऐसा होता है. सो प्लीज आस्क योर सेल्फ हाउ मच यू आर ओके विथ लूजिंग एंड देन गेट इन टू द ट्रेड. ठीक है. सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग पर्सनल रिस्क ट्रिगर्स. ठीक है. क्या होता है ना कि लोगों का कंफ्यूजन है ऑप्शन बाइंग को लेकर एंड एक ओवरऑल कंफ्यूजन है ट्रेडिंग को लेकर कि ट्रेडिंग इज लाइक अ सिस्टम जहाँ पे यू पुट अ मनी इनटू द सिस्टम and the system does some calculation and gives you profit, right? ऐसा कोई तो सिस्टम है दुनिया में, क्योंकि अगर सब ट्रेडर लोग पैसा बना रहे हैं तो why can't we? Yes, true, you also can make money, but it's not by copying some other traders. ठीक है. It's not by seeing someone else's strategy or system, right? Because अपन अपन हर एक आदमी यहाँ पे एक सोचता अलग है, उसका करने का, बिहेव करने का ढंग एकदम अलग है. ठीक है. दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज डिफरेंट. सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ. अगर आप जब भी कोई ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेते हो तो हाउ डू यू फील, कैसे आपको फील होता है? कैन यू, आर यू एबल विथ, आर यू कंफर्टेबल विथ 100 लॉट्स, 500 लॉट्स, 200 लॉट्स, or just 1 lot? So please ask your, again, the second question is how good you are and how comfortable you are with trading these lots. एक लॉट में भी अच्छा ट्रेड होता है, 100 लॉट में भी अच्छा ट्रेड होता है, 10,000 लॉट्स में भी बहुत अच्छा ट्रेड होता है. ठीक है. बट
आप कंफर्टेबल हो क्या? अगर आप 500 लॉट का ऑर्डर पंच करते हो, उसके बाद आप शांति से बैठ के ऐसा ट्रेड देख सकते हो, तो ठीक है, नो इश्यू। अगर आप 500 लॉट का ऑर्डर पंच करके शिवर कर रहे हो, आपके हाथ कांप रहे हैं, आप ऐसा बेचैन फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज गोइंग टू डू, देन यू आर नॉट ओके विथ उतना बड़ा कैपिटल एंड उतना बड़ा रिस्क। यस अंकुर, इफ आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि या जो जैसे मान लिया कि हमारा पोजीशन जो कैपिटल है बहुत इनफ है, बट इफ यू व्हेन यू सेइंग कि 500 लॉट भी ले लिया जिसने और वो शिवर कर रहा है लेने के बाद, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि उसने 500 लॉट पहले ही क्यों लिया? व्हाट वाज द एग्जैक्टली, नीड? एग्जैक्टली। व्हाट फोर्स्ड हिम टू तो टेक वही, दैट लॉट? या या सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर इज पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज है, you if you see the profits, it's very huge in a single day. ठीक है, you can literally make a good money, a good amount of money in a single day. ठीक है, for option seller you have to करेक्ट, be very patient. ठीक है, करेक्ट, आपको करेक्ट, काफी पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, करेक्ट। you might not get in a day or two, but in a week you are, the winner is option seller only. ठीक है, एक वीक के बाद अगर आप देखोगे तो विनर हमेशा सेलर ही रहेगा। ठीक है, राइट। सो दैट इज बाय डिफॉल्ट कॉज द सिस्टम इज डिजाइन लाइक दैट। ठीक है, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आप रोज काम करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपको रोज ट्रेड करना है, रोज करो, बट कैपेसिटी समझो अपनी, अपनी करेक्ट। क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना सीखो। और वो कंट्रोल में रखने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई डिजाइन नहीं करता है कोई चीज, दैट इज अ पर्सनल पर्सपेक्टिव। कि मुझे लगता है कि 500 लेना चाहिए बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है कि भैया 1700 550 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो लेट्स जंप इनटू 17,600 कॉल एंड आई विल बाय 500 क्वांटिटी। हाउ, करेक्ट। ऑन व्हाट बेसिस यू आर बाइंग दैट? ठीक है, so you have to first ask yourself all these questions, you will definitely get it the answers। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लाइक दिस माइट, काफी लोगों को ये ऐसा साउंड हो रहा होगा कि भाई ये तो साइकोलॉजी की बात है, या फिर ये तो यू नो क्या बोलते हैं उसको, इट्स वेरी बोल सब्जेक्टिव। वचन टाइप, हाँ। बोल वचन टाइप हो गया ये कि लेक्चर दे रहे। लेक्चर दे रहे हो ऐसा टाइप, हम्म। बट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हम्म। आप मेरे को बताओ कोई ऑप्शन बार जो आपको फिक्स एक सिस्टम दे हम्म। कि रिस्क ऐसे होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, सो विल सी, अपन अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, वी यू माइट गेट अ ब्राइटर आइडिया ऑफ व्हाट आई वाज करेक्ट। ट्राइंग टू से एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल अबाउट बाइंग। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद हाउ टू इफेक्टिवली टैकल इट। ठीक है, जब आपको समझ में आता है कि आपका कंफर्ट कहाँ पे है, 50 क्वांटिटी में है, एक लॉट में है, 2 लॉट में है, 3 लॉट में है, 100 लॉट में। ठीक है, उसके बाद उसके पहले कितना खोने को रेडी हो। ठीक है, एक लाख से आप अगर ट्रेड कर रहे हो, तो इफ यू आर ओके विथ लूजिंग 10,000 अ मंथ, तो उसके अकॉर्डिंग यू विल प्लान थिंग्स। नाउ हाउ यू विल प्लान थिंग्स? ठीक है, यू विल फर्स्ट डिजाइन योर एक्शन प्लान। क्या होता है एक्शन प्लान? सबका एक एक्शन प्लान होता है, चाहे वो सेलर हो या एक बायर। ठीक है, और सबके प्लान में एक चीज ऐसी होती है जो उस पर्टिकुलर इंसान को एक एडवांटेज देती है। क्या होती है वो चीज? वो भी आपको ही ढूंढना है। ठीक है, एवरीबडी, इट कैन बी फ्रॉम अ चार्ट, आप कोई टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो उससे आपको समझ जाएगा। नहीं, अभी जैसा मेरा अगर मैं बात करूं तो आई एम अ वेरी डेटा ओरिएंटेड पर्सन, मुझे डेटा में बहुत मजा आता है। आई माइट नॉट लुक टू द चार्ट और इनटू द चार्ट, आई एम वेरी मच इनटू डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा फॉर मी? फॉर मी द डेटा इज ऑप्शन चेन डेटा। ठीक है, इट कैन बी इंडिसेस, मैं डिफरेंट डिफरेंट निफ्टी के इंडिसेस देख लूं कि अच्छा अगर मुझे निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड लेना है तो आई विल बी वॉचिंग निफ्टी के स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स क्या है निफ्टी में जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, उनका डेटा क्या है, उनके ऑप्शन चेन क्या मुझे दिखा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेक अ डिसीजन ऑन निफ्टी कि मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है। ठीक है, उसके बाद आई विल डिसाइड
विच स्ट्राइक प्राइस का लेना है, उसके बाद आई विल डिसाइड कि उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम मेरे लिए सही है क्या नहीं, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेक अ ट्रेड. दिस इज द प्रोसेस. दैट्स हाउ यू टेक अ ट्रेड. यू जस्ट डोंट जंप इनटू द ट्रेड कि अच्छा आज सुबह उठे अपन 9:30 बजे एंड वी सी 16,600 दिख रहा है तो 16,700 ले लिया. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस फॉर मी दैट आई हैव डिजाइन ऑन माय, मतलब मैंने खुद से ये चीज बनाया है, ठीक है. यस, काफी लोग ये सेम चीज फॉलो करते हैं, काफी लोग ये सेम, दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो यू अंकुर जस्ट, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं या, दे हैव टू वर्क फॉर देमसेल्व्स. yes, yes, I don't think, see, it is very much possible that it, see, it's अगर अगर कोई बोलता है ना कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ठीक है, सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में, यू विल जॉट डाउन फ्यू इंडिकेटर्स, ठीक है, कुछ कुछ इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, उस वो कि कैसे काम करते हैं उसका तरीका मिलेगा, राइट. बट क्या उससे आपको ट्रेड मिलेगा? नहीं. आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे अपने दम पे, अपने दम से उन इंडिकेटर्स का एक कन्विक्शन बनाना होगा कि ओके मैं आरएसआई के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं एमएसीडी के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं फिबोनाची के साथ कंफर्टेबल हूँ. तो उसके बाद आपका एक ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बनता जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप वो सिस्टम को यूज टू होते जाओगे एंड अकॉर्डिंगली आपके ट्रेड्स अच्छे बनते जाएंगे. अच्छा ट्रेड होना ही नहीं है, पर अच्छे ट्रेड बनाने पड़ते हैं. इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट. अगर आप में से काफी लोग हमारे साथ, मेरे रिजवान के साथ बजट के दिन लाइव होंगे तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कितना मैनेजमेंट किया था ट्रेड में, ठीक है. वी वर कंटिन्यूअसली डूइंग मैनेजमेंट, बोथ ऑप्शन सेलर वाज आल्सो डूइंग मैनेजमेंट एंड ऑप्शन बायर वाज आल्सो डूइंग मैनेजमेंट, ठीक है. हम हमारा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि हम तो बाय डिफॉल्ट पैसा बनाने वाले हैं. वी मार्केट मेड अस टू वर्क टू अर्न मनी, ठीक है. सो वो सिस्टम हमारे पास है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमको सिस्टम फॉलो करना है, हमको हमारे इंडिकेटर्स, हमारा डेटा देखते रहना है एंड अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है. दैट्स इट. उसमें पैसा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट इज रिस्क मैनेजमेंट में ये सभी आता है, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, बिल्डिंग अ पर्सपेक्टिव. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको पहली बात अपना कैपिटल सॉर्ट आउट करो, कितना कैपिटल आप खो सकते हो, कितना आपके पास है मैटर ही नहीं करता. आप 10,000 से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, 10 लाख से भी कर सकते हो, ठीक है. बट कितना आप लूज करने को रेडी हो वो आपको डिसाइड करना है. उसके बाद आपके पर्सनल ट्रिगर्स क्या है, क्या होता है जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपके साथ क्या होता है, उसको लिखो एक जगह पे. समझो कि आपका बिहेवियर कहाँ पे स्ट्रांग है. हर एक आदमी का एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, हर एक इंसान का एक स्ट्रांग पॉइंट होता है. सम आर गुड विथ पेशेंस, सम आर गुड विथ रिएक्टिवनेस. एक एक लोग ना 2-2, 3-3 पॉइंट लेके भी निकलते हैं, ठीक है. सो दैट्स देयर एडवांटेज. सो प्ले यूर एडवांटेज. अगर आपको 2-3 पॉइंट में निकलता है ना तो निकल जाओ. 2-3 पॉइंट निकलने के बाद भी अगर वो ट्रेड आपके ही डिरेक्शन में जा रहा है तो कोई रिग्रेट मत रखो, ठीक है. वो चीज को समझो, राइट. विल देन नेक्स्ट चीज पे आते हैं अपन, एंट्री एंड एग्जिट. ये काफी लोगों ने पूछा है हमको फीडबैक में. सो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी पर्सनली बिकॉज देर इज नथिंग लाइक एक्यूरेट एंट्री और एग्जैक्ट एंट्री, ठीक है. ऐसा कोई चीज नहीं है या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको बोलता है कि एंट्री एग्जिट लो, ठीक है. यस, आप इंडिकेटर्स को देख के उन पे थोड़ा सा स्टडी करके आप एक बैक टेस्टिंग से एक चीज, एक एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर आरएसआई ऊपर जाता रहेगा, 20 के ऊपर रहेगा, 40 के ऊपर रहेगा तो आई विल बाय. या फिर एमएसीडी अगर मूविंग दिखा रहा है मुझे इन अपवर्ड डायरेक्शन तो आई विल बाय. या फिर एमएसीडी डाउनवर्ड्स कर्व अगर बना रहा है तो आई विल एग्जिट और आई विल बाय पुट. ऐसा आप एक चीज बना सकते हो. बट
क्या वो सिस्टम आपको गारंटी देता है कि दिस इज द राइट एंट्री या फिर दिस इज द राइट एग्जिट? आस्क योरसेल्फ, क्या वो देता है गारंटी है? नहीं, राइट? Yeah, आई डोंट थिंक not possible. कोई भी ऐसा एक सिस्टम रहेगा जो आपको देता रहेगा ऐसी गारंटी. Correct. So it's the game of probability. You have to understand that. ठीक है? And you have to So first Ankur, of all whatever act. you are saying, because Hmm. the data which I can see is the number of Yeah. people with trading style of being a scalper is around 50%. Okay. Yes. तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर भी है 38%. तो वट एवर यू सेइंग कि कैसे हमें एक एंट्री परफेक्ट एंट्री नहीं होता है, तो इज इट ट्रू Hmm. फॉर बोथ ऑल द पीपल और इज इट टू स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्टाइल? Yeah. So for a scalper, as I am myself a scalper as well. So मेरे लिए एंट्री एग्जिट का कोई चीज ही नहीं, एंट्री एग्जिट जैसा कोई चीज ही नहीं. द प्रॉब्लम विद पीपल इज कि उनको लगता है कि इसी पॉइंट पे ही एंटर होना पड़ता है. दिस इज द प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन कि, और क्या है ना कि ट्रेड जब बन रहा है ना, तो ट्रेड में फिक्स एंट्री नहीं होती. अगर लेट्स से निफ्टी 10 रुपए से 20 रुपए की ओर जा रहा है, ठीक है, सो फॉर सम पीपल एंट्री माइट बी एट 10 रुपीज, फॉर सम एंट्री माइट बी 11, फॉर करेक्ट. सम एंट्री माइट बी 20 एज वेल. ठीक है, करेक्ट. बट उसका ये मतलब नहीं है ना कि एंट्री सिर्फ 10 पे ही होना चाहिए राइट. या फिर एंट्री सिर्फ 20 पे ही होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द कंफ्यूजन बिटवीन मेनी पीपल कि एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए. समटाइम्स ये भी एक लॉजिक आता है कि जैसे हम सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि एंट्री लेना है, ठीक है, Yes. अब स्टॉक का प्राइस 10 पे जाएगा, तभी तो तुम मेकअप माइंड करोगे ना कि 11-12 पे एंट्री लेंगे, Yes. 13 पे Yes. लेंगे. Right. एंड फॉर But दैट इट हैज टू गो एटलीस्ट 9 को 9 पे जाए, 10 पे जाए, फॉर yeah. यू टू इवन सेम इज देयर फॉर द एग्जिट. आई होप यू विल Yes. कवर दैट. सो Perfect. तो प्राइस में थोड़ा मतलब जितना भी आपका एंट्री रहेगा एग्जिट रहेगा उसको थोड़ा Yeah. सुपरसीड करना चाहिए प्राइस को, बिल्कुल बिल्कुल राइट? करना चाहिए. अभी काफी टाइम ऐसा होता है ना, लाइक व्हेन आई एम से कि ऑप्शन बाइंग का मैं जब बात कर रहा हूँ, तो काफी टाइम यू विल सी, ऑल ऑफ अस विल सी कि आप स्पॉट प्राइस, स्पॉट का चार्ट खोलो, लेट्स से रिलायंस का स्पॉट का चार्ट देखो और फ्यूचर्स का चार्ट देखो. ठीक है, क्या होता है ना कि स्पॉट में यू वोंट सी सच मूवमेंट हैपनिंग कभी कभी, बट फ्यूचर इज भाई फुल पॉइज्ड है, फुल वोलेटाइल राइट. एक्शन हो रहा है फ्यूचर्स में. करेक्ट. ठीक है, एंड ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन क्या करता है? ऑप्शंस चेन जो बनती है या फिर ऑप्शन का जो प्रीमियम्स का जो भी प्राइस रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ दीज फ्यूचर्स एंड स्पॉट प्राइसेस, राइट? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप ऑप्शन में एंट्री कर रहे हो ना, तो ऑप्शन प्रीमियम की एंट्री का प्राइस अब पे आपको ध्यान ही नहीं देना. ठीक है, ओके. बहुत कम बार ऐसा है, लाइक अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो, तब आपको ऑप्शन प्रीमियम्स पे ध्यान देना है, कॉज वहां पे आपका जो डीके है, जो आप डेल्टा से डील करने वाले हो, यू हैव अ वेरी लेस टाइम विद दैट गाय. ठीक है, एंड जब स्टॉक ऑप्शंस में आप बात करते हो, तो स्टॉक ऑप्शंस में आपके पास 1 महीने का टाइम है, यू हैव अ वेरी सॉफ्ट डीके देयर, वो एकदम चिल डूड है. ठीक है, बट इंडेक्स वाला जो डेल्टा है वो बहुत हार्श है. तो चाहे आप, अभी मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ कि जहां पे मुझे इंडेक्स का डेल्टा हो या स्टॉक ऑप्शंस का डेल्टा हो, मैंने इसको निग्लेक्ट ही कर दिया. मैंने ये सोच लिया कि चल मैं इसको देखूंगा ही नहीं. ठीक है, अगर मैं उसको देखता ही नहीं हूं तो मेरे लिए एंट्री बैरियर कोई है ही नहीं. ठीक है, काफी लोगों का ऐसा सोचना होता है कि थर्सडे के दिन ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि थर्सडे इज द एक्सपायरी एंड डेल्टा इज वेरी लो, तो इट्स अ सेलर्स डे. बट वी ऑल must have seen so many option buyers, traders जो है, they are making good money on the expiry day as well. करेक्ट. Right? Now why that is happening? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके लिए बैरियर डेल्टा है ही नहीं, वो बैरियर सोचते ही नहीं है. उन्होंने दिमाग से हटा ही दिया है कि हमारे लिए डेल्टा बैरियर है, थीटा हमारा एडवांटेज है, या ऐसा कुछ है, कुछ भी है, वो सोचते ही नहीं. उनको सिर्फ भाव से मतलब है.
करेक्ट। उनको सिर्फ प्राइस से मतलब है कि प्राइस के क्या मुझे दिखा रहा है। अगर मुझे प्राइस दिखा रहा है कि अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है, तो आई विल एंटिसिपेट अ बाय, आई विल एंटिसिपेट अ बाइंग अ कॉल ऑप्शन। अगर मुझे दिखा रहा है प्राइस की प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन, तो आई विल एंटिसिपेट अ पुट ऑप्शन बाइंग। दैट्स इट, यही मुझे ध्यान में देना है, ठीक है। एंट्री एंट्री का भी ऐसा होता है ना कि first of all, entry is not a, you know, everything. When you first ask me about risk management, तो उसमें भी how you are going to define your questions कि what is risk management for you, आपको डर किस बात का है, ठीक है। आपको तो डर एक ही बात का है ना कि आपको आप जितना कैश लेके आए हो मार्केट में, आपको वो खोना नहीं है, राइट। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिस्क मैनेजमेंट तो एक ही चीज है कि आपको पैसा बचाना है, राइट। करेक्ट। और कुछ है ही नहीं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ऊपर से एक बर्ड आई के व्यू से देखोगे, तो रिस्क मैनेजमेंट तो एक ही चीज हुई कि अगर मैं 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आया हूं, तो मुझे 1 लाख, चाहे 1 लाख पे 1 ही रुपया बने, पर 1 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। करेक्ट। तो सेम चीज एंट्री एग्जिट में, एंटर करना है ना, करो, बट देन यू शुड नो कहां पे एग्जिट करना है। एंट्री का मालूम होना नहीं मालूम होना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे हिसाब से एग्जिट मालूम होनी चाहिए। एग्जिट इज व्हाट डिफाइंस अ बायर्स कैरेक्टर, क्योंकि जिसको एग्जिट नहीं पता ना, वो कुछ नहीं कर सकता। एंट्री का छोड़ दो, एंट्री कहीं पे भी ले लो, बट एग्जिट पता होनी चाहिए कि मेरा लिमिट कहां पे है, कि मैं कहां तक ये चीज को जाते हुए देख सकता हूँ। चाहे फिर वो उसके ऊपर भी जाए या उसके नीचे आ जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो हाउ एंड व्हेन टू एंटर एग्जिट इज, फर्स्ट डिफाइन योर एंट्री। डिफाइन करना मतलब आपको सिर्फ सोचना है, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस ये डिसीजन पे आना है कि मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, दैट्स इट। उतना ही आपको करना है, ठीक है। अगर आप कोई चार्ट देख रहे हो, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर आप वो सब चीज देख के एक डिसीजन पे पहुंचते हो कि मुझे कॉल लेना है या फिर मुझे पुट लेना है, तो ले लो, ले लो बिंदास, कोई इशू नहीं है, बिंदास लो। लेकिन लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप कब एग्जिट करने वाले हो। फिर चाहे आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो, ठीक है। तो एग्जिट कहां पे होती है, अभी जैसी मेरी एग्जिट कहां पे होगी, आई नो कि इफ आई एम एग्जिटिंग एट एक्स पॉइंट, तो आई विल एग्जिट एट 50x। 50% तो मिनिमम मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा पर्सनल है कि 50% लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन अगर मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं कितना लॉस ले सकता हूं, दैट इज 2% और 3% और मैक्स 5%। सो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं खोने को 5% रेडी हूं, बट मुझे चाहिए 50%। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इफ यू गाइस सी, इफ यू गाइस अक्यूमुलेट दिस, लेट्स से मैंने 100 ट्रेड्स किए, तो 100 में से लेट्स से 50 ट्रेड्स जो थे या फिर 70 ट्रेड्स थे मेरे, जो 5% लेके गए मेरे, ठीक है। बट 30 ट्रेड्स थे मेरे पास जो मुझे 50% देके गए, राइट। राइट। तो जो मेरे विनर्स थे, वो मेरे विनर्स काफी बड़े थे, नंबर ऑफ विनर्स बहुत कम है। बट अंकुर, इफ यू कैन शो ऑन द चार्ट कि या जैसे तुमने बोला कि एग्जिट लेने से पहले तुम्हें, सॉरी, एंट्री लेने से पहले यू हैव टू नो अबाउट योर एग्जिट्स। यस करेक्ट। यस सो यस सो अगर तुम रिस्क रिवॉर्ड जैसे तुमने बताया कि 5:1 का है, या तो उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जहाँ पे एग्जिट का बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आएगा फैक्टर। दिस इज माई पर्सनल ना, कि अभी अभी मैं वो सिस्टम को यूज टू हो चुका हूँ। अभी मुझे उस हैबिट को मैंने एक एक हैबिट, मेरा वो कैरेक्टर बन चुका है अभी। करेक्ट। कि पहले कैसा है कि कोई भी ट्रेडर जब जब इवॉल्व होता है, जब वो स्टार्ट करता है, तो उसे कुछ पता नहीं होता, ठीक सो है। इफ यू कैन शो अस अ या एग्जांपल कि तुम्हारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है,
वेयर यू Yes. कीप 1:10 रिस्क रिवॉर्ड, Yes. और उसके बीच में कोई ऐसा सिनेरियो हो जहां पे बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल फोर्स कर रहा है कि एग्जिट हो जाओ, लेकिन स्टिल यू आर बिल्कुल कैरिंग ऑन टू इट. बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास एक सो लेट्स डू. या. निफ्टी का. सो we'll move to the budget day. ठीक है, दिस इज द बजट डे आई गेस. 2 तारीख को बजट था राइट? हाँ, 1 तारीख को. एक तारीख को राइट, 1 तारीख को बजट था. ठीक है, सो दिस हम्म. इज 5 मिनट ऑफ निफ्टी. ठीक है, दिस ओके. इज निफ्टी ऑन 5 मिनट्स. ठीक है, सो एज अ ऑप्शन बायर व्हाट आई डिड वाज कि आई बॉट अ स्ट्रैडल. ठीक है, मैं एक दिन पहले, 1 तारीख के एक दिन पहले आई बॉट अ स्ट्रैडल ऑफ कोई तो एक स्ट्रैडल लिया था. मतलब मैंने कॉल भी बाय किया है, ऑप्शन भी बाय किया है विथ सेम स्ट्राइक प्राइस. ओके. ओके, ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम प्राइस. ठीक है, उसके अलावा जब बजट डे स्टार्ट होता है तब भी मैं कुछ ऑप्शन बाइंग में कर रहा हूँ. नाउ व्हाट आई डिड ऑन द बजट डेज, मैंने एक चीज फिक्स कर ली थी कि जब तक एक वन साइड मूवमेंट नहीं आएगा ना, आई विल स्टिक टू द स्ट्रैडल. ठीक है, जब भी वन साइड मूवमेंट आएगा I'll try to scalp as much as I can. Okay, so what I did here, see, ये पहला कैंडल बना तो एक काम करते हैं, 10 बजे तक इसको छोड़ देते हैं. ठीक है, 10 बजे तक तो काफी ठीक है. काफी कुछ एक्शन हो चुका था निफ्टी में. ठीक है, तो एक तो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद भी इट टच्ड 600. ठीक है, 17600. उसके बाद क्या हो रहा है देखो. ठीक है, अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बाय करता हूँ कॉल ऑप्शन. ठीक है, एंड द कॉल ऑप्शन इज एट 100. ठीक है, सो व्हाट आई एम एमिंग नाउ इज कि आई एम ओके विथ लूजिंग 5%. सो व्हाट इज 5% ऑफ दैट इज 20 रुपीज है. नहीं, कितना हो गया, 5 रुपए ना राइट? 5% ऑफ 100 इज या 5 रुपए. या 5 रुपीज. या बट मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, 50 रुपीज. ठीक है, मैं खोने को 5 रुपए रेडी हूँ एंड मेरे को चाहिए 50 राइट. रुपए. तो क्या हुआ रहेगा यहाँ पे, अभी देखो, ये एक बनी ग्रीन कैंडल, अनदर ग्रीन, बट वापस डोजी, देन वापस डोजी एंड नाउ फॉल. अब यहाँ पे क्या हुआ, एज अ ऑप्शन बायर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 5% का. राइट, बट मुझे 50% मिला क्या, नहीं मिला, तो मैं निकल गया यहाँ से. But Ankur, you said that you do not keep any stop losses. So Yes, yes. how do you convince yourself and buckle up कि भाई now it is going above 5 Yeah. points? So and on the same day what happened is कि यहाँ ये जो मूव आया था ना यहाँ पे, many must have seen कि मेरा यहाँ पे I was in the loss and then this gave me around 9,000. 3x 4x हो गया था वो. Yeah, it was Right, from yeah. the loss of minus 3,000 it went on till 9,000 profit. Correct. So मैंने वहां पे भी सेम चीज बोला था कि I want double or nothing. Right. मुझे इतना प्रॉफिट मिलने के बाद भी जो मेरा एम है वो मुझे मिलना चाहिए. आई एम रेडी टू लूज इतना प्रॉफिट. मैंने यहाँ पे पुट बाय किया था एग्जैक्टली यहाँ पे, या ये क्या कैंडल में लिया रहेगा, एंड लुक हाउ मेनी पॉइंट्स इट हैज गिवन मी. बट वहां पे मैं पैनिक नहीं हुआ. ठीक है, प्रॉफिट इज नॉट द गेम. सी, प्लस माइनस वो सब होते रहेगा, वो सब छोड़ दो, उसका सोचो ही मत. आप अपना सिस्टम सीख. ठीक है, मार्केट आपके साथ खेलता है, बट आर यू दैट पपेट हु इज गोइंग टू प्ले ऑन द टर्म्स ऑफ मार्केट, या फिर आपके टर्म्स है? ठीक है, इट यू हु इज द बॉस. ओके, आप बॉस हो. ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि जब ट्रेड तो मेरे अगेंस्ट हो गया तो आप काफी लोग मेरे को बोलेंगे ये तो बेवकूफी थी कि आपने बुक ही नहीं किया प्रॉफिट. बट ऐसा नहीं है, मेरा सिस्टम है भाई, वो मेरे को 50 पॉइंट तो चाहिए मिनिमम. मैं तो 100 का एक्सपेक्टेशन भी रखता हूँ कभी कभी. सो मुझे 50 पॉइंट चाहिए, बट मैं खोने को 5 ही रेडी हूँ. सो दैट्स व्हाई माय एंट्री इज नॉट फिक्स्ड. मैं कहीं पे भी एंटर हो सकता हूँ, बट मेरा एग्जिट फिक्स रहता है हमेशा. I am able to lose 5%, but I want minimum 50 points minimum. Okay. 5. Okay. Correct. So
आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड ऑल दिस. तो ऐसा है कि काफी क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट रखना है आपको एज अ बायर कि आपको हर चीज फिक्स करके रखना है. इतना लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट बनाना है, इतना ड्रॉडाउन है तो इतना मैनेज करना है. ठीक है. कंट्रोल कंट्रोल में होना चाहिए हर चीज और फिक्स होनी चाहिए. अपन अपन जब भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अपन एक मेगा मॉल में जाते हैं तो वहां पे अपन देखते हैं 10 दुकानें लगी हुई. ठीक है. कि लिवाइस में 50% ऑफ है, H&M में 30% ऑफ है, लाइफस्टाइल में 20% ऑफ है. बट हम उन ऑफ को देख के शॉपिंग नहीं करते ना. हम घर से निकलते वक्त ही सोच के जाते हैं कि मुझे तो जीन्स लेना है, राइट. अब वो कहीं भी मिले. करेक्ट. ठीक है. सो एंट्री वही होती है. एंट्री क्या होती है कि हमको सोच के जाना है कि भाई ठीक है, कहीं भी चलो, कोई भी दुकान दिखाओ मुझे, मुझे तो लेना तो जीन्स ही है. तो मेरा फिक्स है ना. आई नो कि आई मुझे क्या लेके बाहर निकलना है. सेम चीज यहाँ पे भी है कि एंट्री कहीं पे भी लो, रिस्क जब तक आपका फिक्स नहीं होगा तब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं होगा और एग्जिट भी नहीं होगा. ठीक है. करेक्ट. सो प्लीज प्लीज डिफाइन दैट फॉर योर सेल्फ. ओके. उसके बाद वो सेम चीज पे आने वाला था मैं कि एज पर जो भी एंटर एग्जिट के जो भी फैक्टर्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं ना, डिफाइंड होते हैं. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबका रिस्क मैनेजमेंट का टेक्निक तरीका अलग है, सबका एनालिसिस का तरीका अलग है. वैसा रिस्क मैनेजमेंट के भी कुछ फेजेस है. ठीक है. तो अभी ये जो भी फेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, आप चूज कर लो कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल या फिर कहाँ पे फिट बैठते हो. ठीक है. अगर एज पर चार्ट ना, व्हाट इज एज पर चार्ट की मतलब आप कोई चार्ट देख रहे हो जैसे ये चार्ट है, एंड आपका एक फिक्स एनालिसिस है, उस एनालिसिस से आपको समझ रहा है कि एंटर होना है तो हो जाओ एंटर. बट एग्जिट चार्ट के हिसाब से नहीं होता है ना. चार्ट तो क्या, चार्ट का तो नेचर है कैंडल्स बनाते रहना. इट कैन मेक ग्रीन कैंडल्स, इट कैन मेक रेड कैंडल्स. बट एग्जिट कहाँ पे होना वो आपको ही डिसाइड करना होता है. ठीक है. फॉर सम इट कैन बी कि हाँ, अगर XYZ लेवल पे है एंड एक एक ABC लेवल पे आएगा तो आई एग्जिट. तो वो भी एक चीज पॉसिबल है. कुछ लोगों का रहता है एज पर प्राइस. एज पर प्राइस मतलब कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट या फिर ऐसा एक उनका पैटर्न बन जाता है कि निफ्टी 17,000 पे है ना, तो आई टेक अ कॉल टिल निफ्टी रीचेस 17,200. ठीक है. दैट इज फाइन. बट यू शुड नो विच कॉल टू टेक ना. देन अगर आप वीकली कॉल लोगे और वीक में वो 17,200 पे नहीं गया तो फिर आप फंस गए. ठीक है. अगर आप मंथली कॉल लोगे तो हाई आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने की, कि हो सकता है कि मंथ के एंड तक वो पहुंच जाए वहां तक. ठीक है. बट ये भी चीज हो सकती है कि एक ही दिन में, जिस ही दिन आपने कॉल लिया उसी दिन वो 17,200 पे पहुंच जाए. तो आपका ये जो टारगेट था 17,200 वो तो आपको मिल गया. तो तब आप क्या रुकोगे वहां पे, क्या निकलोगे? प्रॉफिट फिगर देख के आप तो यही सोचोगे कि मैं तो रुकूंगा यार यहाँ पे, मेरा तो जो 100 रुपए का ऑप्शन था वो तो 200 हो गया. तो यहाँ पे आपने आपके सिस्टम को नलिफाइड या फिर वॉइड कर दिया. यू हैव डिस फॉलोड योर सिस्टम. तो सिस्टम 101% आपको पनिश करेगा वहां पे, क्योंकि आपने अपना ही रूल तोड़ दिया कि आपका जो टारगेट था 17,200 वो आपने लिया नहीं, और आपने लालच और प्रॉफिट का ग्रीन 4 फिगर 5 फिगर देख के आपने ये सोचा कि नहीं मैं तो और कंटिन्यू इसको ट्रेल करता हूँ. बट नो, दैट इज रॉन्ग. यू शुड एग्जिट. यू शुड एग्जिट फ्रॉम दैट. अगर कोई चीज फिक्स करनी है आपको तो ये ही बिहेवियर आपको फिक्स करना है पहले, कि हर चीज फिक्स होनी चाहिए, हर चीज रूल के हिसाब से होनी चाहिए. यू प्रूव मी रॉन्ग ऑन दिस थिंग, कि आप मुझे बताओ कि अगर आप ये पैटर्न फॉलो करो कि आपका हर चीज फिक्स है, आपके स्टॉप लॉसेस फिक्स है, आपके एग्जिट फिक्स है, एंड देन यू कम टू मी एंड टेल मी दैट यू आर नॉट मेकिंग मनी. इट इज कंप्लीटली इजी. लोगों को लगता है इतना आसान कैसे है ये,
ऐसा होता ही नहीं है, cause many people are used to seeing that different ऐसा भरा हुआ कंप्यूटर स्क्रीन स्पेस. आई थिंक अंकुर, लाइक तुमने जैसे बताया शुरू में कि योर एंट्री शुड नॉट बी फोर्सफुल, लाइक यस. मतलब तुम एंटर हो रहे हो, अगर तुम अपना पोजीशन साइज दे के बिगनिंग में ही तुमने डिफाइन कर दिया है कि भाई 50% आज मेरे को खोने का है, अब उस हिसाब से तुमने 1 लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिया और तुम बैठे हो, और उस पे भी इफ यू टेक एंट्री वेयर यू हैव आल्सो डिफाइंड योर एग्जिट, तब तो डर तो एकदम खत्म हो गया ना फिर. यस. तो देखो, ऐसे काफी लोग हैं हु आर रेडी टू लूज देयर एंटायर कैपिटल. ठीक है, राइट. कॉज उनका वो तरीका है खेलने का. ठीक है, दिस इज द गेम. ठीक है, अल्टीमेटली वी आर प्लेइंग अ गेम जिसमें कुछ लोगों का तरीका है मिनिमल रिस्क लेने का, कुछ लोगों का तरीका है अल्टीमेट रिस्क लेने का, इतना भयानक रिस्क कि आप अपन सोच के अपन देख के वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल. एंड स्टिल some of them are making money, most of them are losing money, but some of them are always making money. By most of them, Ankur, you must be very specific that it must be over and above 90%. यस. यस. सो दैट इज द थिंग ना कि क्योंकि क्या होता है अभी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अपना एक नॉर्मल बिहेवियर ले लो. ठीक है, स्कूल एक है, स्कूल में 100 लोग पढ़ते हैं, कितना लोग टॉप करता है? हमेशा एक ही बंदा होता है या फिर एक ही मैन होगा या तो वुमन होगी जो हमेशा टॉप आएगा. तो व्हाई द टॉप इज वन? टॉप पे हमेशा एक ही चीज क्यों होती है? क्योंकि दैट इज द लिमिट. वो लिमिट है. अगर आपके पास 80% है, दूसरे के पास 85 है, तो 85 इज द विनर ना बाय डिफॉल्ट. So that's how numbers work. That's how the world works. कि Ankur, top you पे come जो to रहेगा. North India, here we don't talk below 96, 98%. Yes. अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लो यार भाई, वहां पे कॉलेजेस ऐसे 99.99% आपको चाहिए I know, to I am from Delhi get the University, I admission in. can understand the struggle. So so this is the bar they have set. ठीक है, Correct. बट ये बार जो सेट हुआ है ना, ये कोई एक दिन में सेट नहीं हुआ है. ठीक है, या फिर 1 साल में 2 साल में नहीं बना. Those people have literally built their foundation by brick. ठीक है, धीरे 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 सबके लॉसेस हुए हैं, सबके प्रॉफिट्स हुए हैं, सबने वो चीज समझी है. धीरे धीरे उन्होंने स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेना है. ठीक है, ये सब जो होता है ना, ये सब कोई एक चीज में. मैं भी आपको जब इतना सब बता रहा हूँ तो these all these thoughts have come from experiences. ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बात कर रहा है आपके साथ. ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ मनी. ठीक है, इंसान को दो चीज से बहुत डर लगता है, एक है डेथ एंड दूसरा है मनी. कि भाई पैसा नहीं खोना चाहिए, भले मैं कमाऊं ना कुछ, बट जो मेरे पास है वो जाना नहीं चाहिए. राइट. सो प्लीज फिगर आउट ऑल दिस थिंग्स फॉर योर सेल्फ. ठीक है, काफी लोग ऐसे हैं हु हैज अ गुड फाइनेंशियल बैकिंग. काफी लोग ऐसे हैं हु थिंक दैट यू नो they can make themselves financially free by doing all this. Ankur, we have a So question here. Sorry to interrupt. yeah. So, Yeah. one guy is asking, can we do averaging in option buying in case of not comfortable with big lots? Yes, that's a very good question. मेरे को लगा ही था कोई तो ये चीज पूछेगा, and I was waiting for this. क्योंकि क्या होता है ना कि काफी लोग नॉर्मल जो स्टॉक्स लेते हैं, जैसे अपन स्पॉट में जो भी स्टॉक्स लेते हैं उसमें काफी लोग एवरेज करते हैं. ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग में यस यू कैन एवरेज, बट व्हेन? दिस इज द क्वेश्चन, बट व्हेन? सो व्हेन द ऑप्शन प्रीमियम्स आर राइजिंग, मतलब जो भी आपका ट्रेड लिया है, चाहे आपने कॉल ऑप्शन लिया है या पुट ऑप्शन लिया है, अगर वो ट्रेड आपके साइड जा रहा है, ठीक है, आपके प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तब आप उसको एवरेज कर सकते हो. बट आपके प्रीमियम्स अगर गिर रहे हैं, दैट मीन्स जो ट्रेड आपने लिया है वो आपके अगेंस्ट जा रहा है. राइट. तब आपको एवरेज नहीं करना है, तब आपको एग्जिट करना है. ठीक है, तो एवरेज पिरामिड आपने देखा होगा, पिरामिड. राइट. पिरामिड बनता कैसे है? वो नीचे में ब्रिक्स नहीं लगाता, ऊपर में ब्रिक्स लगाता है. राइट. तो पिरामिड हमेशा ऊपर जाके श्रिंक होते रहता है हमेशा. तो उसका बोलने का मतलब क्या है कि जो उसके बेस में, अगर लेट्स से अगर एक पिरामिड है, उसका बेस जो है एकदम बॉटम,
अगर उसका 10 ब्रिक से बना होगा तो उसका जो ऊपर का बॉटम, एग्जैक्टली ऊपर का जो बॉटम होगा वो 8 या 9 ब्रिक से बनता है। वहां पे वापस 10 ब्रिक्स नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एवरेजिंग इन व्हेन द प्रीमियम्स आर राइजिंग और व्हेन द ट्रेड इज इन द फेवर ऑफ योर्स? उससे क्या होता है कि आपका जो बाय प्राइस है वो कम होते रहेगा, प्लस आपके प्रॉफिट्स जो है इट विल बी वेरी मच मैनेज्ड। आपका रिस्क हमेशा कम रहेगा। नहीं, बाय प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाएगा अगर हम ऊपर ऊपर उसको यस, पिरामिड करें। बट प्रीमियम भी तो बढ़ रहा है ना, करेक्ट। तो इट इज गुड फॉर अस। ओके। बट जब प्रीमियम गिर रहा है और तब अपन एवरेज कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इज अपन रिस्क में डबल रिस्क ले रहे हैं। लेट्स से मैंने 10,000 का एक कॉल लिया एंड द कॉल इज गोइंग डाउन, कॉल इज गोइंग अगेंस्ट मी, ठीक है। तो क्या होगा, 10,000 से लेट्स से मैं आ गया -2,000, दैट इज 8,000, ठीक है। तो 8,000 पे मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं वापस एवरेज करता हूँ। हो भी सकता है कि आपके एवरेजिंग प्राइस से वो वापस घूम जाए एंड देन ऊपर चले जाए, बट इसके चांसेस कितने हैं, बहुत कम, करेक्ट। ठीक है। तो मुझे वो रिस्क निकाल ही दिया मैंने, ठीक है। आई एम काफी कम चीजें हैं या फिर काफी कम एक्शंस ऐसे हैं जिस पे मेरे को यस बोलना है। मेरे को ये चीज पता है कि मेरे को कहाँ पे नो बोलना है, मेरे को कहाँ पे यस बोलना है। इट कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर सम पीपल, बट मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ पे नो बोलना है, करेक्ट। ठीक है। अगर एंट्री मुझे मेरी फिक्स नहीं है, दैट इज फाइन, दैट्स व्हाई आई सेड कि एंट्री मेरी फिक्स नहीं है, दैट इज फाइन, बट एग्जिट इज फिक्स। So I know, I know when to say no, bhai. This is enough for me. That's it. Correct. So Ankur, you got more 5 minutes. So then after that, Yeah, I can start. yeah. So this is the exactly entry exit plan, guys. इस पे अगर आपको और कुछ पूछना है, you can ask. ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं समझा देता हूँ चार्ट से। सी, so this is the chart and this is something which I use. This is so this is the red line which you can see. This is VWAP. Okay. सो एज अ टेक्निकल चीज में मैं बोलूँ तो मेरा ऐसा एक मानना है कि जब भी वी एज दिस इज अ डाउन ट्रेंड, बिकॉज वी आर सीइंग दिस हायर हाइज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्मेशन, बट यहाँ पे एक हाई बन रहा है वापस, ठीक है। हायर हायर लो इसने बनाया है यहाँ पे। तो वीवैप के पास आता है तो ये मेरा एक स्ट्रेटेजी है कि वीवैप के पास जब भी आएगा तो आई मेक अ न्यू सेल पोजीशन हियर, ठीक है। तो आई बाय पुट्स हियर। तो मैंने यहाँ पे पुट लिया तो उसका मेरा स्टॉप लॉस सेम 5%, बट मेरा एग्जिट जो था दैट इज 50%। तो सेम थिंग, आई हैव गॉट दिस थिंग हियर। तो यही वो एग्जांपल था जो मैं आपको चार्ट से दिखाने वाला था, ठीक है। सो आई हैव शोन यू दैट ऑन निफ्टी एज वेल एंड दिस इज बैंक निफ्टी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली सिस्टम एक बना है। सिस्टम में इसी के तरीका, आप कोई भी कंपनी में जाते हो ना बड़े, तो कोई भी कंपनी होती है, हल्दीराम है, कोई भी बड़ी जो कंपनीज होती है, तो वहां पे एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है काम करने का, एक ऑटोमेशन चलते रहता है। वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता कि अच्छा डिमांड आ गई है तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, ऐसा। दैट इज द नीडेबल एक्शन व्हेन इट इज नीड, जब उसकी जरूरत है तब वो लिया जाएगा, बट एक बाय डिफॉल्ट एक प्रोसेस बना है। अपन एसओपीज बोलते हैं जिनको, कि सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो बनी हुई है। जब कोई एक्सट्रीम कंडीशंस आती है तब अपने को ऑब्वियसली एक प्लान बी प्लान सी होना चाहिए, बट नॉर्मली ऑन द नॉर्मल डे यू शुड हैव अ सिस्टमैटिक ऑपरेशन प्लान, ठीक है। Correct. So now scaling up. So scaling up is very short and very simple answer is this, कि nobody, even you, nobody means others, and even you can't tell when to scale up. It's the system, it's your consistency and it's your trading will tell you to scale up, ठीक है। तुम दूसरों से इसका आंसर नहीं ले सकते हो, तुम खुद से भी इसका आंसर नहीं ले सकते हो। ये तुम्हारा कंसिस्टेंसी, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड तुमको बताएगा कि तुमको स्केल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, यू शुड नो, तुम्हारा डेटा, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि तुमने 1 लाख पे कितना बनाया है। तुम एक लॉट से ट्रेड कर रहे थे 1 लाख रुपए के लिए 1 साल तक, एंड यू हैव मेड 50% प्रॉफिट, सो दैट मीन्स नाउ यू आर एलिजिबल टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अपन गेम खेलते हैं
तो गेम में एकदम से अपना लेवल नहीं बढ़ता, वी हैव टू डू सम टास्क, हमको करेक्ट। कुछ करना होता है, कोई जेम्स कलेक्ट करने हैं, कुछ मैप्स कहीं जाके कोई टास्क करना है, वो सब करने के बाद भी लेवल अप, ठीक है। तो वो लेवल अप करने का तरीका होता है कि पैसे से लेवल अप करना है, आप लॉस में हो फिर भी आपको पैसे डालना है, सो दैट इज नॉट स्केलिंग, दैट इज यू आर कंप्लीटली वेस्टिंग एंड बर्निंग दैट मनी। सो अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। स्केलिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि हाउ गुड एंड कंसिस्टेंट यू आर विथ योर रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड आपका देखो, आप जेरोदा में ट्रेड कर रहे हो, फायर्स में कर रहे हो, जो भी इसमें कर रहे हो, बैक ऑफिस जाओ, डेटा निकालो पूरा, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए आपने, उसमें से कितने प्रॉफिटेबल है, कितने लॉसेस है, कितना आपने बनाया है, वो सब देखो। उसके बाद खुद सोचो, खुद उसका जवाब दो कि क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्या आपको स्केल अप करना चाहिए। अगर आप 1 लाख से कर रहे हो तो आपको 2 लाख वापस डालना चाहिए उसमें, आपको आंसर मिल जाएगा। हाउ ऑफन यू फील टू स्केल अप, काफी लोगों का ऐसा है ना, स्क्रीनशॉट देखना है, ठीक है, बहुत से लोग स्क्रीनशॉट देखते हैं, ठीक है, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, उनको लगता है कि नहीं यार मुझे भी ये डालना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये पर्टिकुलर, ये जो इसने 1 CR बनाया है ना, मेरे को भी 1 CR आज ही बनाना है, आज ही आज ही। So if you are feeling this type of scale up, then bro, that is not a scale up. That's scaling up ठीक the है, psychology. yes, so please understand that, ठीक है। अगर कोई बंदा कंसिस्टेंट है, you know, कोई बंदा कंसिस्टेंट है, he is making regular profit with fixed rules, fixed set of rules, he would never feel to scale up. Ankur, I've seen some people, they have taken a position and फिर क्या करते हैं, they go on to ask their friends कि यार I have taken this call, I have taken this put, and they go on to find their consensus कि whatever Yes, decisions they have made वो वो सही उनको है कि नहीं। सुनना, उनको सुनना है कि तू, हाँ, हाँ तूने सही किया है। तू भी मेरे साथ है, तू भी मेरे साथ, तू भी मेरे साथ है, हाँ हाँ ठीक है। तो Yeah, but इवन that's अगर not इवन right. इफ दैट इज नॉट करेक्ट, दे विल गो ऑन टू द ट्विटर, दे विल Yeah. चेक व्हाट एक्शंस आर बीइंग, तो वो लोग क्या करेंगे, व्हाट देयर आईज Hmm. वांट टू सी, आईज वांट टू रीड, तो वो चीज वो रीड करते हैं और नेक्स्ट डे दे स्केल अप। Yes. इवन द सिस्टम डाउनफॉल होता है तो दे कीप ऑन एवरेजिंग कि भाई नीचे गिर रहा है, Yes. सिंस दोज पीपल आर स्टिल माइट बी इन द गेम एंड दे आर स्केलिंग अप, आई विल आल्सो डू दैट। Yeah. बट उनको नहीं पता कि भाई वो लोग तो बेच के निकल गए सुबह सुबह, तुम लोग बैठे हुए हो। Yes. So please understand that, ठीक है, scaling up is a very big and important part of any business, be it trading or any other business. But scaling comes automatically, ठीक है, scaling forcefully नहीं होता, ठीक है। I was into the same doubt, same question, but I understood this by myself, fortunately, कि आई एम स्टिल एट नॉट दैट पार लेवल। आप मुझे अभी भी देखोगे ना, मेरे काफी जो ट्रेड्स होते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन बाइंग में, इट्स मोस्टली विथ 2-3 लॉट, दैट्स इट, ज्यादा नहीं करता हूँ मैं, दो अंकुर, तीन यू लॉट गॉट टू से ही। मिनट्स मोर। या सो 2-3 लॉट से ही मैं करता हूँ, 2-3 लॉट से ही मेरा मोर देन इनफ बनता है, बिकॉज मेरे टारगेट्स वैसे है ना, ठीक है, मेरे टारगेट्स बड़े होते हैं तो मुझे वो 2-3 लॉट में ही काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो वैसा मेरा एक सिस्टम बना है, दैट्स व्हाई आई हैव नेवर फेल्ड टू स्केल अप, ठीक है। स्केलिंग मींस बिगर कैपिटल, ठीक है, आपको बड़ा कैपिटल बनाना है तो आप बड़ा कैपिटल लाते हो, उससे ट्रेड करते हो। स्केलिंग मींस बिगर प्रॉफिट, यस, बिगर प्रॉफिट, बट scaling also means bigger losses. करेक्ट। Are you able to take those big losses? Do you have that capacity to see on the screen with a 5-minute candle giving you a 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh, 50 lakhs, 1 CR, 50 CR loss? Do you राइट। have that mental ability to take it? करेक्ट। No, then please don't scale up. एक दिन कितना कमा लोगे यार, इलॉन मस्क नहीं बन जाओगे 1 साल में, ठीक है। इलॉन मस्क जितना वेल्थ नहीं बना सकते आप, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ जीरो सम गेम, ठीक है। राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एंड एंड में ये जो चीज, जो मुझे काफी लोग मिलते हैं वो बोलते हैं, जब भी मैं उनको ये सब बातें समझाता हूँ, एंड में वो मेरे को यही चीज बोलते हैं
वो सब ठीक है भाई, पर जल्दी पैसा कैसे बनाएगा वो जल्दी पैसा कैसे बनाएगा उतना बताओ, हमें भी स्क्रीनशॉट मारना है. सो दिस इज ऑन अ लाइटर नोट कि सी, ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ पेशेंस गेम. यू शुड फर्स्ट गिव इट अ टाइम, गिव योरसेल्फ टाइम, गिव, अंडरस्टैंड योरसेल्फ. आपका जैसा नेचर है ना, आपके नेचर को समझो. ट्रेडिंग, मुझे एक चीज बहुत रियलाइज हुआ है कि ट्रेडिंग से मैं अपने आप को बेहतर समझ पाया हूँ. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द एनलाइटनमेंट जो होता है ना ट्रेडिंग में खुद का, वो किसी और चीज में नहीं होगा. आई राइट. डाउट, मतलब ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन से भी इतना भयानक आप समझ नहीं पाओगे खुद को जितना आप ट्रेडिंग में समझ पाओगे. यू लिटरली अंडरस्टैंड योर होल नेचर. करेक्ट. So that's it, guys. So this is the ending. I am ending my presentation with this quote: "Ki amateur traders are obsessed with making money. Pro traders are obsessed with managing risk." दैट्स अ We, परफेक्ट कोट yeah, अंकुर. we never discuss money. ठीक है, रिजवान, आई एंड आवर फ्रेंड्स, हम जो लोग भी, हम पैसा कभी नहीं डिस्कस करते. We discuss trades, we discuss logic, we discuss techniques. That's how you improvise yourself. That's how you improve yourself. So that's it from my side. थैंक यू सो मच अंकुर, दैट वाज सच एनलाइटनमेंट. और अगर व्यूअर्स, अगर आप समझे, अंकुर ने कुछ मतलब ऐसी बात नहीं करी है कि जो विच इज नॉट अवेलेबल देयर. Yeah. द होल थिंग इज कि वट एवर यू आर फाइंडिंग, जो भी तुम सीखना चाह रहे हो, इट इज ऑल देयर. ऑल यू Yeah. नीड इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन सी चीजें तुम्हारे लिए वर्क करती है, उसको Yeah. बस एक जगह इकट्ठा कर लो और उसके साथ प्ले करो बस. Yeah. Slowly and So steadily, brick by brick, just play on it. someone has asked कि in case of not comfortable with big lots, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही उसका आंसर है. In case you are not comfortable with big lots, then why Right. you have to take trade with big lots? Correct. क्यों लेना है ट्रेड? Correct. Correct. ट्रेड विथ स्मॉल. भाई एक ट्रेड में अगर आप 100% बना रहे हो, बैंक निफ्टी का मिनिमम एक सिंगल लॉट का प्राइस होता है 10,000. 10,000 से 20,000 के रेंज में एक सिंगल लॉट बनता है बैंक निफ्टी का. उस पे आप 100% बना लो एक दिन में या फिर एक वीक में, हो गया यार. एक दिन, एक वीक में आप 10,000 20,000 बना रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ. Correct. Okay, so I'll take over, Ankur, from here. या You allow. प्लीज आस्क क्वेश्चन गाइस. ओके, अगर आपको कुछ भी पूछना है प्लीज डू आस्क. ओके. Okay, guys. So अंकुर का जो थॉट प्रोसेस था ऑप्शन बाइंग में लेके, तो फर्स्ट थिंग यू वुड हैव टेकन केयर कि हमेशा जो तुम्हें जहाँ पे कंफर्ट आता है, जो प्राइस लेवल पे, जो पोजीशन साइज पे, यू हैव टू बी वेरी मच करेक्ट विद इट. अगर तुम करेक्ट नहीं भी हो तो यू हैव टू हैव अ स्टॉप लॉस. सो इवन इफ अंकुर सेज दैट ही डज नॉट कीप एनी स्टॉप लॉसेस, ही स्टिल हैज अ माइंडसेट कि कहाँ पे एग्जिट होना है. ठीक है. तो फॉर द ऑप्शन सेलर इट इज क्वाइट डिफरेंट. सो मी एंड अंकुर आर क्वाइट ऑपोजिट इन नेचर, जो हम लोग करते हैं. बट व्हाट वी आर शोकेसिंग यू इज कि जो दोनों साइड ऑफ कॉइन है, दे ऑल वर्क इन टैंडम. तो उसका टैंडमनेस प्रॉफिट में आता है, बिकॉज एंड गोल क्या है? एंड गोल इज प्रॉफिट मेकिंग. तो प्रॉफिट मेकिंग जब आता है हमारे पास, तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि अंकुर की क्या स्ट्रेटजी है, मेरी क्या स्ट्रेटजी है. तो ओनली थिंग इज बेटर कि हाउ मच मनी यू आर पुटिंग इनटू द टेबल. तो लेट मी जस्ट फर्स्ट मेकअप. मैं थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि आपको एक, मान लिया एक स्ट्रैटेजी बनाया हमने ऑप्स्ट्रा में. ठीक है, लेट मी ओपन दिस. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. यस, इट्स विजिबल. ओके, ग्रेट. सो लेट सपोज हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ऑप्शंस की. तो अभी मैंने कोई चार्ट नहीं देखा है, पहले एक बार एक एनालिसिस बना लेते हैं कि क्या है एनालिसिस. लेट्स गो टू 45 मिनट्स कैंडल और बैंक निफ्टी स्पॉट खोल लेते हैं. तो स्पॉट में अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि सिंपली, या ब्लैक लाइन को भूल जाओ, ब्लैक लाइन को भूल जाओ, अभी कुछ नहीं करना है इसका. तो स्पॉट में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, जो गैप को ये फिल करके थोड़ा सा रिएक्शन दे रहा है. ठीक है, लेट मी मार्क इट विद रेड लाइन. ओके, ये थोड़ा सा रिएक्शन दे रहा है. नाउ अदर थिंग इज कि यहाँ पे थोड़ा एक कंजेशन आया था, कंजेशन के बाद इट हैज डिसाइडेड टू गो डाउन साइड. ओके,
तो यहाँ पे एक और लाइन में मार्क कर दूंगा। अब फॉर एन ऑप्शन सेलर इफ ही इज ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल, सो वो क्या करेगा कि ही वांट कि प्राइस सबसे ज्यादा इधर ही रहे, ठीक है। तो इधर रहने का मतलब प्राइस का कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, अब देखते हैं। तो ऊपर की तरफ से 39,157, 38,572, तो 38,000, लेट्स राउंड इट अप, 39,200 and 38,600, okay, let's do this. So 38,600 puts, let's do with 4 lots, not more than that, 100 quantities. And on the call side 39,200. Okay, naked straddle, this is a strangle. तो अब इसमें देखो सबसे पहले तो मेरे को, जैसे अंकुर ने बोला कि हाउ मच रिस्क इज देयर, तो अगर तुम रिस्क का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, इसमें तुम्हें पता ही नहीं है कितना लॉस करने वाले हो, तो देयर इज नो नीड कि यहाँ पे एंटर होने का भी कोई फायदा नहीं है। तो पहले तो ब्रेक इवन बना लो। मैं जो करता हूँ पहले स्ट्रैटेजी बनाती है, फिर उसके बाद उसका ब्रेक इवन मेरे को डिफाइन चार्ट पे चाहिए। 37,000, ऑलमोस्ट 38,000 एंड 39,800, तो उसका अब चार्ट पे हम ब्रेक इवन लेवल बनाएंगे। सो दिस इज 38,000 फ्रॉम द डाउन साइड, सो लेट्स टेक दिस एज द न्यूट्रल जोन। तो न्यूट्रल जोन इज एनी जोन वेयर आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद, ये मतलब प्राइस जितना मर्जी यहाँ पे मूव करे मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि प्राइस यहाँ पे मूव करे, जो मर्जी करे, ऊपर नीचे, नीचे जाए, स्पीड में जाए, जो मर्जी करे। एंड 39,800 ऑन द अपर साइड, so you can see quite a wider range this is, right, quite a wider range. Now for an option seller, अब ये चीज को जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज हमारा पास होगा, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है दिस इज कमिंग अराउंड 60,000 एंड probability of profit is also quite weighted on the higher side, 56%. बट इसमें अगर मेरे को रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट में what I'll do is I'll simply take the calculator and I'll try to make a sense कि ये जो strategy है according to the profit, probability of profit, according to the maximum profit, maximum loss, ठीक है, उसमें मेरे को कितना इसमें प्रॉफिट, इसमें एक्सपेक्टेशन मेरे को रखना चाहिए। तो मैक्सिमम लॉस अभी अनडिफाइंड है यहाँ पे, तो फॉर द टाइम उसको अभी थोड़ा साइड करते हैं। अगर हैड इट बीन द केस आई कन्वर्टेड इट इनटू आयरन कॉन्डोर, उसमें ये एलिमेंट भी आ जाता। तो अभी के लिए क्या है, सी मैक्सिमम प्रॉफिट इज 9.24%, सो 0.924 into 0.5614, which is the probability of profit. So this is coming out around 5%, ठीक है। Yes, oh sorry, this would be 0.0924 into 0.5614. So this is coming out to be around 5.18%. So 5.18% is the maximum amount which I should be targeting. So 6,50,000 यहाँ पे हमने इन्वेस्ट करा हुआ है, और 0.052 is somewhere around 33,000. So even though there was a question also in the questionnaire कि हमें कितना 60% लेना है प्रीमियम कि 50% लेना है प्रीमियम, so here you get the answer कि you see 33,000 जो आया हमारा, which is on account of the maximum profit of around 60,000. So that if you get that 33,000, you start trailing your profits. But before that, how would you enter into this strategy? So what I do is I will make a consensus here. So मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये स्ट्रैंगल बनाना है, ठीक है। अब ये स्ट्रैंगल को बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, देखो सबसे पहले गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। नाउ व्हाट आई सी हियर इज, आई सी कि प्राइस जब भी 20 मूविंग पे आ रहा है वो थोड़ा लंबा नीचे जा रहा है, राइट। देखो 20 मूविंग पे आया, बहुत नीचे गया, अब दोबारा पे यहाँ पे आया, दोबारा से इसने रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि एज द मार्केट ओपन्स एंड द डेटा गेट्स एक्टिवेटेड, सो आई रीड द डेटा फर्स्ट कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स में जो डेटा बनाया है, इफ इट इज ऑन द बेरिश साइड, so I will enter the call first. I will time my entry.
और एंट्री जो कॉल साइड पे भी होगी दैट वुड बी नॉट कि मेरे को 4 लॉट जो मेरे को सेल करना है, आई विल नॉट डू दैट, आई विल एंटर विद 2 लॉट्स और मैं वहां से थोड़ा सा डेल्टा कैप्चर करूंगा, ठीक है। लेट सपोज आई एंटर्ड हियर एंड द डेटा वाज बेरिश, आई एंटर्ड एंड आई कैप्चर्ड सम डेल्टा हियर। सो जब 2 लॉट का मेरे को डेल्टा आ गया, मेरे पास कुशन प्रॉफिट आ गया, तो मॉर्निंग में ही मेरे को एक साइकोलॉजिकल किक मिला कि यार अब तो मेरा दिन बन गया है, बट द मोमेंट आई गेट होल्ड ऑन टू माई प्रॉफिट्स, अब मैं नहीं जाने दूंगा इसको। जब प्रॉफिट आ गया है मेरे पास, अब इसको नहीं जाने देना है, because market में there is always a tussle, there is always a tussle to snatch the money, it's a zero sum game, and in fact it is a negative sum game because brokerages are there, taxes are there। तो ये जो snatching game है ना, ये बहुत ruthless है। तो you must be feeling quite lucky even if you get an iota of an edge। अगर थोड़ा भी, अगर मान लिया ये 33,000 का जो मैक्सिमम प्रॉफिट को हम टारगेट कर रहे हैं, अगर मेरे को यहाँ पे 1900 या समवेयर अराउंड 700 का भी डेल्टा एज मिल जाता है ना, immediately what I'll do is, since I entered into 2 lots here, I will enter from the put side again 2 lots। so what I have done is I have converted into strangle। तो मैंने जो इनिशियली प्लान किया था 4 लॉट से एंटर करने के लिए, आई हैव एंटर्ड विद 2 लॉट्स ऑफ कॉल फर्स्ट, एंड वंस आई गॉट सम कैप्चर इन द डेल्टा, आई एंटर्ड विद द पुट्स। so now I have made it non directional। now what I'll do is, now I will again wait for the price to come back to the averages। I will switch to the lower time frame, maybe 5 minutes short, okay। then I'll look on कि यहाँ पे एक यहाँ पे अटेम्प्ट किया हायर हाई बनाने का, बट फेल हो गया। अब यहाँ पे लोअर लो जैसे ही बनाएगा, ठीक है, लोअर लो बनाएगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा, मैंने अपने 2 लॉट्स एंटर हो गया हूँ यहाँ तक। अब जब ये दोबारा यहाँ पे आएगा, आई विल अगेन एंटर इनटू द कॉल्स, आई विल अगेन सेल CE। now the moment I do that, I will be very much cautious because I can be right once, I can be right twice, I cannot be right for the longer period of time। so that psychology always be with you, keep it with you कि भाई मैं correct हो गया हूँ, soon the someone will come and snatch my profit। always have that kind of feeling। but once you have the hand holding of data, once you know how the weaker and the stronger price action works, and on top of that once you know how the black line works, तब तुम्हें बहुत बड़ा एज मिलता है। और वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा सिस्टम, एज अंकुर ऑल्सो सेड कि तुम्हें अपना सिस्टम खुद ही फाइंड करना है। यू हैव टू नो कि तुम्हारा क्या नेचर है ट्रेडिंग का, और उसके बाद ही यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच वन सूट्स यू द बेस्ट, व्हाट लॉट साइज, व्हाट एंट्री पॉइंट एंड व्हाट नॉट। सो जो 2 लॉट हम यहाँ पे पेयर सेल कर रहे थे यहाँ पे, अब मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट कि मैं बाकी के 2 लॉट कैसे सेल करूंगा। So once the moment it hits here, I will sell again CE। The moment it takes a turn like this and I have a delta benefit, I will convert it into strangle again with PE, correct। now what I have done is, as an option seller, I have, as an scalper, I have captured the delta, as an option seller I have converted my deltas into non-directional, secured it profitably, and I would be definitely running into some amount of edge of profit, and that edge of profit will help me drive all through the day। वो पूरा दिन मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस देगा कि यार अभी तो लॉस नहीं हो सकता ना, अब तो या तो ब्रेक इवन होगा या तो मैं थोड़ा सा लॉस करके एग्जिट हो जाऊंगा, करेक्ट। so this is what strategy is there for an option seller, that if you time your entry and once you have made up your mind, because if you're into stock market और ये बोलो कि भाई मैं तो नॉन डायरेक्शनली बनने वाला हूँ, ये तो है नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे मैंने ये स्ट्रैंगल बनाया भी, तो मैंने क्या व्यू तो लिया ना, मैंने आई एम ऑलवेज टेकिंग अ व्यू कि यहाँ पे जाएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे सपोर्ट फेस करेगा, तो आई एम मेकिंग अ व्यू। नाउ इफ यू आर मेकिंग अ व्यू, व्हाई नॉट टाइम योर एंट्री। once you time your entry and you know knock off some of the deltas, तो वो एज को तुम्हारे साइकोलॉजिकल जो किक मिलता है ना, दैट वुड बी क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग। सो दैट इज वन टेक अवे। नाउ सेकेंड थिंग विच आई वांटेड टू टेल इज कि आपने एंट्री तो ले लिया,
अब एग्जिट कैसे होना है? तो देखो कैलकुलेशन में तो पहले ही मैंने देख लिया कि 33,000 अगर प्रॉफिट आता है, सो इट वुड बी गुड इनफ फॉर मी टू एग्जिट। बट इन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होना है? मान लो कि ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, तो मैं नेचुरल गैस लेता हूँ जस्ट टू रैंडमाइज, एंड आई हैव आल्सो टेकन सम ट्रेड्स देयर। सो नेचुरल गैस में ब्लैक लाइन था अपना, ठीक है। So some of you might know that how I trade blackline is blackline is a super sonic line which gives you extra conviction to enter into any trades, and this is purely based on its price action in the previous history, the nearest one. And from here you see that जैसी जैसी natural gas black line को hit कर रहा था, I was ready with my entry, and I was ready with my entry not just with a blind faith, बिकॉज यू सी कितना रिस्क है यहाँ पे। देखो इतने फोर्स से जब प्राइस नीचे आ रहा है, सबकी लग जाएगी ना, कौन एंटर होगा यहाँ पे? सब डरेगा ये ब्रेक कर गया नीचे जा रहा है, बट नहीं, ब्लैक लाइन पे आया है। वंस इट हैज गिवन मी कंफर्मेशन फ्रॉम हियर, देन अगेन इट इज फॉर्मिंग अ डिमांड ओवर हियर। देखो विक फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, फेल्ड एंट्री आ रहा है, बट अभी इग्नोर करो, यहाँ पे दोबारा से इसने कंफर्मेशन दिया, इट्स रिएक्टिंग टू द ब्लैक लाइन। So once it reacts to the black line, I have to enter here because मेरा system बोल रहा है enter करने के लिए। So if I delay my entry here, if I enter here, तो मैं अपना stop loss कहाँ रखूंगा? Stop loss तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो enter नहीं होऊंगा मैं। I have to enter here, I have to enter। Now once it breaks this on the downside, I have to exit, right? Now for the second time when it comes, now again when it comes for the second time, I cannot take entry here, even though this Rizwan, sorry to break in. yeah. There's one question for you. Hi Rizwan, can you touch upon the point of the timing the hedges as well, so that we can hold through the position more? See, hedges is simply you can see कि मैं जो hedge को लेता हूँ ना, that is simply a cost to me। जैसे ब्रोकरेजेस टैक्सेस वगैरह देते हैं, बिकॉज hedging का हमारा मेन मोटिव होता है, जो अभी मतलब प्रेवलेंट हुआ है, कि टू टेक द मार्जिन बेनिफिट, ठीक है। अब मार्जिन बेनिफिट जब ले रहे हो, तो मान लिया तुमने एंट्री करना है कॉल साइड से, जैसे जो एग्जांपल मैंने लिया था, व्हेन यू आर टाइमिंग योर कॉल एंट्री, देन यू टेक द कॉल साइड फर्स्ट। Now, once you have captured the delta, once you're ready with the call side, now you have to take the hedge on the put side first. और तो क्योंकि you have to enter, you have to make it non-directional, because ज़्यादा edge तुम्हारा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। You have to scalp it and corner it। तो call side पे hedge लो पहले, फिर call side पे sell करो, फिर once you are done with your delta capturing, you buy the put side, okay, you buy the hedge, and then you should be ready with selling the puts also, correct? So what I'm saying is कि यहाँ पे मेरा एंट्री नहीं बनता है, because this is a non virgin black line, तो यहाँ पे मैं एंटर नहीं होऊंगा। बट what is there कि जैसी मैं यहाँ पे अब दोबारा से थर्ड टाइम ये ब्लैक लाइन यहाँ पे आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आई हैव टू एंटर एंड फ्लिप माय पोजीशन। तो दिस इज व्हाट प्रोफेशनल ट्रेडर्स विल डू, कि एक बार जब तुम्हें यहाँ पे एंट्री मिल गया तुम्हारे सिस्टम में, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, इट्स बैंगिंग ऑन टू द वॉल कि आई विल हिट यू, and once it hits that, you have to enter again. So I will take entry again here. So if you have seen my telegram channel, I shared ki how I entered into a trade over here also. तो यहाँ पे जो एंट्री लिया हमने, ये सेल साइड पे लिया। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है देखो, अब ये जो चीज है ये नेचुरल गैस का बहुत रिसेंट है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने एंटर किया, वेरी फेथफुली यू विल एंटर हियर, ओके। यहाँ पे देयर इज एन अवॉइड। नाउ द पीपल माइट बी थिंकिंग कि यार यहाँ से तो डिमांड जोन है। भाई ये तो डिमांड जोन होता है, बहुत लोग सिखाते हैं ऐसा कि यार ये तो डिमांड जोन है, कुछ नहीं करना है, डिमांड सप्लाई जोन देखो और बाय कर लो। बट यू इफ यू डू नॉट नो द लॉजिक ऑफ द वॉल्यूम, यू डू नॉट नो द लॉजिक ऑफ द प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे देखो वीकर सपोर्ट बनाया है, ठीक है। माय स्टूडेंट कैन रिलेट कि वीकर सपोर्ट बनाया है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया है, एंड दिस इज बाउंड टू बी ब्रोकन, ठीक है। अब तुम बाइंग का अगर एंट्री तुम यहाँ पे ले रहे हो, देन यू आर अ फूल। अगर बाइंग का एंट्री तुम यहाँ पे ले रहे हो, देन ऑल्सो अगेन यू आर अ फूल। अब सेलिंग कहाँ पे करना है, सिंपली बताते हैं।
अब एक नॉर्मल हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है, और नॉर्मल ट्रेंड लाइन बनाया है, और नॉर्मल ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर एक रिएक्शन दिया, बहुत ब्यूटीफुली रिएक्शन दिया। लेट्स सी कि हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे कैसे करेंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे हम जैसी कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पे एंटर होंगे, ठीक है, यहाँ पे एंटर होंगे और इसके ऊपर ये वाला बड़ा कैंडल है, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अब ये चीज तो तुमने सोच लिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम एग्जिट कहाँ पे होंगे, ठीक है, बिकॉज ये तो यार एक्सीडेंटल है ना, ये तो बहुत लेस लाइकली है। बट फॉर पीपल हु कैन रिलेट कि बिकॉज ऑफ दिस वीकर सपोर्ट you keep your target just below this. Now even if I do that, is it reasonable enough? What I'll check, look at the risk reward, how pathetic it is, 0.67. Now for an scalper this is quite good enough, because उसको तो क्या, यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ एग्जिट, यहाँ वो एंटर हुआ, एग्जिट। नाउ फॉर अ स्विंग ट्रेडर, फॉर अ पोजिशनल वन, दिस इज क्वाइट रिस्की। तो इसलिए यू हैव टू डिफाइन कि भाई तुम कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा क्या साइकोलॉजी है, और जब तुम एंट्री ले रहे हो तुम्हारा एग्जिट वहां पे है कि नहीं। कि भाई सिंपली तुमने देखा और तुम्हें आज मम्मी ने कुछ दही खिला दिया, तो यू फीलिंग लकी कि भाई नहीं ये तो नीचे ही जाएगा, मैं जितना मर्जी सेल करूंगा ये उस प्राइस के नीचे ही जाएगा। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? So that's it guys, very concise presentation from my side कि how you have to time your entry and how you have to take care of it. So if there are more questions, please bring it up. Very much from like I have also understood very few points about the seller and how they also think. Yes, Chitra, Rahul, Karan, Kishan, Pankaj, you can also speak. I have unmuted all, so you can also talk to us. Hi Pankaj, Naveen. Hello Rohan. Thank you Shyam. Yes, my students are also there. They have come to listen to you, Ankur. They Some of them are option buyer, even though they have joined the course to get trained for an option selling. But I said like if you're comfortable with, you can go ahead. Not an issue. So anyone who is option buyer, please ask question if you have any. So I would love to answer anyone. Okay, Suraj, Kishan, nobody wants to talk. Like guys, this is the problem. See, we are here sitting to tell you what has to be done, right? So this opportunity will not be there for you forever. So just ask us, will not be there for you forever. How to decide strike price for option selling? Suraj is asking. Strike selection is simply you have to look at the option data where there is maximum amount of writing. You can select that safely, or you can study the price action. Price action पे जो तुम्हें जो भी points मिल रहे हैं, you can select that, and on top of that also you have to align it with the OI data. Okay Anoop, not an issue, you can continue with your travel. Thanks for joining up. Sir, any suggestion on drawing the black line? So you can write me at pivotaltraders@gmail.com. So black line deduction, we do it in a training session. So you can ask about it. You can email and let me know. I think this one is for me. Is it necessary to look at delta all the time for exiting trade? Yes, Ankur, you can take. See, if you are asking from a buyer's point of view, so I don't think delta doesn't. Yes, delta do matter, but not every time. ठीक है, हर बार delta matter नहीं करता है. कुछ specific time होते हैं. Let's say the VIX is very high, or the IVs of the premiums, the IVs of the strike prices is very high. तो वो time पे delta matter होगा, but इतना कुछ नहीं. ठीक है, so do not think of it as a negative.
मैं तो बोलता हूँ उसका कुछ सोचो ही मत, ठीक है। ग्रीक्स जो भी है ना एग्जैक्टली, वो इवन है वो अंकुर आई डोंट सी डेल्टा, मेरे को समझ नहीं आया कि डेल्टा देख के क्या फर्क पड़ जाएगा। बिकॉज ये देखो, यस मैं अभी ऑप्शन चेंज दिखाता हूँ, देखो माई स्क्रीन इज देयर अंकुर। यस यस ओके, सो गाइज डेल्टा का जो सबसे ज्यादा, देखो इट्स अ बेसिक लॉजिक, डेल्टा का जो बेसिक लॉजिक यही है, जितना जितना इन द मनी होगा उसका डेल्टा ज्यादा रहेगा। यस दैट इज सिंपल। द ओनली टेक अवे यू नीड, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। यू लुक एट इट, जितना जितना इन द मनी हो रहा है इसका डेल्टा ज्यादा है। अब ये तो थोड़ी ना होगा कि 38,500 का डेल्टा ज्यादा होगा और 38,200 का कम होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए डेल्टा को बस ये कंपोनेंट मान के चलो कि एक ऑप्शन प्रीमियम के इंग्रेडिएंट्स हैं ये, डेल्टा यस गामा थीटा वेगा, दीज आर जस्ट इंग्रेडिएंट्स, और इसको एक मसाला बना के एक चीज बनती है ऑप्शन का प्रीमियम। या अब उसको कैसे तुम्हें मैनेज करना है वो, बिकॉज So दैट इज I think there is also one question for you, Rizwan. या Which one is better, Iron Condor or Iron Fly for selling? see, again that depends upon the psychology of yourself and how do you manage the trades, because iron condor I guess में, market situation पे भी थोड़ा depend करेगा हाँ क्योंकि बिल्कुल, दोनों यू strategies हैव टू अलग लुक हैं. एट द विक्स ऑल्सो, बिकॉज अगर ज्यादा विक्स रहता है तो ऑलवेज गो फॉर द कॉन्डोर्स। अगर विक्स कम है यू कैन कंफर्टेबली पुश अप टू द आयरन फ्लाई। सो Yeah. so can someone enter with 1 to 2 lakh into option selling? Yes or no, because it would be very, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो बहुत जाएगा, टाइट हो जाएगा वो, बहुत very. ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएगा। बेटर यू शुड ऑप्शन अवॉइड। बायर के लिए तो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी, ऑप्शन बायर कैन लिटरली स्टार्ट फ्रॉम 10-20,000 हाँ, till wherever you want, बट ठीक है. अगेन यू हैव टू बी लाइक ऑप्शन Yeah. बाइंग का जो लेकिन आप अगर सक्सेस रेट। 10,000 20,000 में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मे यू हैव अ हाईएस्ट चांस ऑफ लूजिंग दैट 20,000. ओके, वेरी इजी. सो राइट, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. करेक्ट। 1-2 लाख से अगर आप कर रहे हो ऑप्शन बाइंग तो आई डोंट थिंक एनीवेज, क्योंकि क्या होता है ना कि ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज है कि भले ही आपका कैपिटल कितना भी बड़ा हो, यू विल बी ओनली यूजिंग वेरी स्मॉल कैपिटल ऑफ दैट. राइट, उसका बहुत कम पोर्शन आप यूज करके ट्रेड करोगे. सो अंकुर अगर 1-2 लाख का कोई बंदा है उसको ट्रेडिंग कर रहा है ऑप्शन में, अब बाइंग करना है, तो हाँ, एट अ टाइम कितना परसेंटेज उसको यूज करना चाहिए? देखो अभी मेरा जो पोजीशन साइजिंग होता है ना वो इसी पे है. सी, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. आई थिंक आई शुड हैव कवर्ड इट. इसमें क्या होता है ना कि लेट्स से आपका लेट एग्जांपल लेते हैं 2 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है. तो आप कभी भी 2 लाख से ट्रेड नहीं लोगे. आप कोई भी ट्रेड, आपको कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आगे में, फिर भी आप 2 लाख से कंप्लीट ट्रेड नहीं लोगे, करेक्ट, ठीक है. यू विल ऑलवेज ट्राई टू यूज 30% और 20% ऑफ इट, ठीक है. राइट, 30% would make I think around 60,000 or something. So करेक्ट। that would be best. Okay, so next question is there from Chiranjeevi. Chiranjeevi, hi, how are you? How to decide which options selling strategy to deploy in the day trading? Sometimes it's little confused for me. Okay, so Chiran, इसका strategy again strategy को हमेशा simple रखो, because as I always say कि there are so many variables which you are trying to get hold on to, ठीक है? तुम प्राइस देख रहे हो, तुम डेटा देख रहे हो, फिर तुम्हारे पास इतने सारे नॉइजेज आ जाते हैं, कोई बाय कर रहा है, कोई स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, जैसे अंकुर बोलता है, ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया उससे तुम इन्फ्लुएंस हो गए। तो ओनली थिंग इज कि सिंपल स्ट्रैटेजी जो है ना उसको ही लेके चलो। स्प्रेड्स ले लो, ठीक है, कॉल पुट स्प्रेड ले लो, स्ट्रैडल ले लो, स्ट्रैंगल ले लो, दीज 4 स्ट्रैटेजी इट्स मोर देन इनफ। इससे ऊपर जाओगे। देखो जितना जितना कॉम्प्लेक्स तुम्हारा सोचना रहेगा ना, हम्म, मतलब जितने कॉम्प्लेक्स तुम सोचोगे ना उतना मुश्किल होगा आपको ट्रेड लेना, ठीक है. सो जितना इवन सिंपल आप आपका थिंकिंग रखोगे उतना सिंपली आप ट्रेड कर सकते हो. राइट अंकुर, इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शन बायर लाइक आसिफ, वो तो बोलता है यार मैं हेज क्यों लूं जब मेरा विजन ही क्लियर है। Exactly. So नो, he is very clear. If he you is see not that, able to even, he is not even yeah, ready to buy the he edge. never does hedge. Huh? If you are following him on Twitter, he's a such a smart and such a intelligent trader. He is. I really admire him a lot. So you know that's what that is the part one should look to learn.
that's the character one should look to implicate. ठीक है Correct. कि if a guy who is taking such a big position that's also in naked plain vanilla ले रहा है वो, so Correct. he must have developed something ना, कुछ Right. तो उनका Right. एक एज Right. होगा, कुछ Right. उन्होंने बनाया होगा, कुछ वो पैटर्न फॉलो करते होंगे, कोई एक हैबिट है जो उनको समझ में आ चुकी कि that habit works for him. I guess That's that a answers your question, Chiranjeevi. Yes, Suraj is asking which expiry near or far should be preferred as an option seller and as an option buyer. Ankur, you can go first. ऑप्शन बायर तो देखो, मैं एक्सपायरी, इफ यू आर ट्रेडिंग इन इंडेक्स ना, एक्सपायरी एक्सपायरी का थॉट या एक्सपायरी का क्वेश्चन तब आता है दिमाग में जब आपका व्यू बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर मेरा व्यू ही नहीं है कुछ, तो आई एम, अगर मैं डेली बेसिस पे ट्रेड करने का सोच रहा हूँ, तो आई डोंट केयर अबाउट एक्सपायरी क्या चल रही है। मैं तो थर्सडे को भी ट्रेड करता हूँ, फ्राइडे को भी ट्रेड लेता हूँ, फ्राइडे को पोजिशनल भी लेता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट फिक्स योर व्यू। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक बड़ा व्यू कैप्चर करना है, तो ऑब्वियसली आपको रिस्क कम लेना है, ठीक है। तो रिस्क कहाँ पे सबसे ज्यादा कम होगा? दैट विल बी इन मंथली एक्सपायरी, ठीक है। बट आप सोच रहे हो कि आपको छोटा ही व्यू कैप्चर करना है, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, तो देन वीकली एक्सपायरी इज गुड। बट हाँ, बाइंग बाइंग में थोड़ा ध्यान रखो कि वेनसडे और थर्सडे को थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करो, ठीक है। वंस यू आर यूज्ड टू दैट सिस्टम ना, देन यू कैन ट्रेड द वे यू वांट। So again, सूरज, the answer for me should be that कि तुम इस चीज को एक स्टैटिकली डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या करना है, बिकॉज ऑप्शन सेलर के लिए क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि इवन इफ विक्स आर क्वाइट लो, बट ऑप्शन सेलर को वो अंदर से वो नहीं लगता है डिस्क्रिशनरी, वो डिसाइड करता है कि भाई नहीं, मेरे को ज़्यादा मंथली नहीं, ये करंट वीक का नहीं लेना है, नेक्स्ट वीक का लेना है। एंड ही इज ऑल्सो लुकिंग एट द कैलेंडर, क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, कब कब विक्स इंक्रीज होने वाला है। तो विक्स का फैक्टर एक बार पढ़ लो कि विक्स जब आता है, इंक्रीज होता है, कैसे अपने पोजीशन को कम करना है, कैसे स्केल अप करना है। तो एक आइडिया अपने अपने एक वॉच लिस्ट में विक्स को ऐड कर लो। एंड व्हेनेवर यू सी कि विक्स का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, यू स्टार्ट शिफ्टिंग टू अ नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ और करंट मंथ। तो ऐसा थोड़ा टाइमिंग को उसको सेट करके रखो। बट कीप इट इन माइंड, इफ आई शो यू द ऑप्शन चेन हियर, लेट मी शो यू हियर। सो अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो, you see here, look at the theta here, all the theta decay is concentrated near at the money। तो सबसे ज्यादा डीके तो यहीं पे होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, 1 वीक, 2 वीक, मंथली, तो डीके जो है ये कम होता चला जाएगा। सो इट डज और नॉट। जहाँ डीके कम है, वो ऑप्शन बायर का एडवांटेज है, हाँ, दैट्स इट। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन बाय का एडवांटेज है। तो if your only motive is to capture the decay, what you do is you don't start your selling on Friday, you don't even start it on Monday, you start on Tuesday, you end it up on Wednesday 2 o'clock, as simple as that. Start on Tuesday, end on Wednesday, simplest, capture all the decay, right? So it depends upon a lot many factors, but yeah, simply put, you have to have a view on the VIX and then you can decide upon it. I hope that answers your question, Suraj. Okay. Okay, guys, we are here. We are waiting for your more questions. Harsh, Rohan. Okay, guys, if there are no more questions, we'll Let's take. ask them question. Let's ask how many. Okay, so guys, how many of you are been trading for more than 2 years? Yes, Pankaj. Okay. I think they are not interactive. Maybe it's Sunday. They Okay, are so Pankaj is there. Pankaj is trading from 2 years. Pankaj okay. has a 2 years Pankaj, experience. are you an option buyer or a seller? Hi. Hi, Pankaj. Well, How are you? thanks to both of you. I'm fine. So
Yeah, actually, earlier it was my kid. He was behind me, so Not an issue, not an try to issue. mute. Yeah, well, I have been trading for like 2 years, but not consistently. Okay. I blew up my capital sometimes, so Oh, I mean, I've tried multiple times. Then I also kept on in taking inputs from the learnings. I learned about this all option Greeks and all that. okay. Now I'm gaining confidence slowly. I'm also working, so Yeah. I'm trying to figure out now. I mean, Great, but all the best. I mean, it is Nice. difficult to build the confidence. So I Yes, Yeah. mean, underconfidence is the main problem. correct. Right. Right. It's good to know, yeah, that you are also working and also trading at the same time. I know that it might be tough for you, but it's such a great thing, man. Such a great effort that is. But best thing is, even after blowing your capital, you haven't given up. You're still trying to figure out things. I think that's the most important thing one can should understand. Ki, see, blowing out capital is not an issue. ठीक है, don't make it a big thing. ठीक है, इतना कुछ बड़ा बात नहीं है वो. सबका हुआ है यहाँ पे, हमारा भी हुआ है, मेरा भी मेरा हुआ भी है, हुआ मेरा है। तो बहुत बार हुआ है. तो बट क्या होता है ना कि यू शुड लर्न फ्रॉम इट. ठीक है, उसको ऐसा डिप्रेशन में मत लो या फिर उसको ऐसा निगेटिवली मत लो कि भाई इतना पैसा नुकसान हुआ है. वो बोलते हैं ना कि सिक्का जहाँ गिरा है वहीं मिलता है, कहीं और नहीं ढूंढना पड़ता है उसको. जहाँ Correct. आपका सिक्का खोया हुआ है उसको वो वहीं पे हाँ, ढूंढो, और मिल जाएगा. पर अंकुर, लाइक दिस थिंग वेरी राइटली पीपल से कि तुम्हारा कैपिटल अकाउंट ब्लो अगर हो गया है, बट इट्स नॉट एन इशू, बट तुम रिवेंज ट्रेडिंग मत लो कि यार 10 लाख हाँ. खोया था तो मतलब यस. 10,000 रोज कमाऊंगा तो 10 दिन में 1 लाख, तो मतलब 10 महीने में ऐसा, ये इट्स डोंट, नॉट पॉसिबल. इट्स वेरी या वेरी डिफिकल्ट इन ट्रेडिंग whatever you have स्पेशली. lost, just forget about it, उसमें अब या. कुछ नहीं होगा. But we really congratulate you that you are buckling up yourself, या. and we'll be really looking forward कि you will have some takeaways from this session, and we can discuss more about it in the next session. Certainly, I mean, it was really valuable. I mean, how to take the entry and exit, what matters actually. So I Yes. didn't have much clue. I used to see charts and just to trade, and Yeah. then learned कि भी Good. कुछ ना कुछ तो base है इसका. मतलब Yes. I try to get into the cause actually. I mean now, Mhm. Yeah. so try to find it. That's all. Sure, sure. All the Thank you best. so All the much. best, The Pankaj. best course you can take is put your money in the market, and market will teach you. That is the best course. Yes, right. Okay, our dear friend Harsh is asking, I buy OTM options in Bank Nifty for 1 to 2 rupees, and I end up losing capital, many expiries. But on some expiries, I have made 20 to 50x money only after 245. So in long term, how does this work? I mean, guy, we don't need to teach you anything when you are yourself making 20 to 50x, and that too after just 2:45 p.m. So you should tell us how does it No. work in the long term. Please never try such tricks, guys. It's very it's very tough to find out some hero or zero trade. तो आजकल ये सब फेड बहुत चल रहा है कि काफी लोग शेयर करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये सब. सो डो नॉट फॉल फॉर सच थिंग. ठीक है, एवरी बिजनेस, एवरी वर्किंग सेक्टर हैज इट्स ओन ग्लैमर एंड चार्म. डू नॉट फॉल फॉर इट. अपना लिमिटेशन समझो. ठीक है, बिजनेस और सेक्टर का कोई लिमिटेशन नहीं होता है. ठीक है, अपना लिमिटेशन समझो, कितना आप कर सकते हो, कितना आपका मेंटल. ठीक है, रात को सोना है ना अच्छे से. ऐसा तो नहीं करना है ना कि भाई रात को भी नहीं सो रहे हो, दिन में भी बिटकॉइन ट्रेड नहीं करना है ना, 24/7 चालू है. ऐसा Correct, तो नहीं करना है ना अपने को. correct. सो अंडरस्टैंड योर ओन लिमिटेशन, कितना आप झेल सकते हो. That's all. और Again, if अकॉर्डिंग. even if you are buying an option premium of 1 to 2 rupees, तो यार तुम 5,000 का खरीद लो ना, 5,000 क्वांटिटी ले हाँ. लो, 10,000 ले लो, बट वो 10,000 it should be at least 1%, 2%, not more than that of your हाँ. capital. So Yes. if you are able to do that, तो I wish you luck कि तुम 20-50x consistently बनाओ. हम्म.
Sir, I buy 2000 rupees every week. Oh, 2000 rupees. Great guy. I Hmm. think this is a very experienced guy. Maybe Yeah. we should call him next time on the session. Okay, guys. So people are leaving. I hope there are no more queries. Hmm. If you still feel any, some people might feel ऐसा प्लेटफॉर्म पे पूछना, काफी लोगों के सामने पूछने का थोड़ा हिचकिचाते हैं लोग, तो do feel free to DM us both. You Right. can DM him also on Twitter and me also. ऐसा Correct. कुछ नहीं है. Okay, guys. We'll take a leave then. Thank you so much for joining. Have a great day. Have a great weekend. Thank you, Ankur, for And your valuable uh, time. yes, same here. I had a great pleasure. And बस क्या भाई, करो मचाओ ये साल. आई थिंक जस्ट स्टार्ट हुआ है, सो यू हैव इनफ टाइम टू प्लान. Right. काफी अच्छा टर्नआउट हो सकता है ये साल सबके लिए. Right. So yeah, let's see क्या है इस साल में. अभी तक तो अच्छा जा रहा है. So this is the Telegram channel link. You can subscribe. Okay, guys, we'll take a leave. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye bye.